Come on, videos on, all of you. Off videos will be out. Come on. Tell me, Ansh Mehta, where will you put purchases? TD. Trading debit. Revin Seth, sales कहाँ जाएगा? Trading. Trading which side? Credit side. Credit side. Riya Lathia, depreciation. P&L debit. Pratham Dinoja, bad debts. P&L debit. Rahul Thakkar, commission paid. Jia Shah, commission received. P&L credit. Jia Savla, capital account, partners capital. Liability. Saisha, machinery. Sir, trading debit. Machinery is trading debit. That's production. But is it an expense or an asset? So it's an asset. So, Oh, sorry. balance sheet, asset. What do you write under trading and P&L? Expenses, which have a life of 1 year or less and which are recurring in nature every year, which you spend again and again to earn income. That is expense. इनका benefit एक साल में expire हो जाता है. नया साल नया pay करना पड़ता है. Assets last long, 10 years, 15 years, 8 years, 5 years. Long-term benefits, future benefits. They go under assets. Nishant, furniture. Asset. Priyansh Dedia, interest received. Trading credit. Sorry, P&L credit. Palak Sardara, wages. Trading account. Which side? Debit side. Smith Shah, carriage inwards. Trading debit. Pujan Bansali, carriage outwards. P&L debit. Priyansh Kapasi, discount allowed. P&L debit. Maya, discount received. Maya, discount received. Discount receipt P&L credit. Nishisha, clearing charges. P&L debit. Clearing. Trading debit. Virali Doshi, forwarding charges. Trading debit. Mhm. P&L. Import and export. Clearing are related to import, forwarding are related to export. Forum Malavia, factory expenses. Trading debit. Mega Goel, unloading charges. Unloading charges is P&L debit. Trading debit. Unload मतलब लेके आना, कुछ को purchase करने का expense. That's So trading please, debit. can you take Dishita in the meeting? Yeah. Just got it? Unload मतलब लेके आना. Loading charges किधर जाएगा? Loading charges. Trading account. Debit. P&L debit. P&L debit because that is Load मतलब imagine करो ना, load मतलब for sales it is. Loading is P&L. Unload खरीदते वक्त unload खरीदते वक्त लेके आते हो ना goods. That is unloading charges. That's trading debit. Elvin Seth, tell me salaries. Salary is trading debit. Wrong. Salary.
PNL, sorry. PNL, office Debit. related expense, हाँ. that will go to PNL debit. मोक्ष Salary यादव, मिलेगा तो सैलरी अपने को कैसा मिलेगा? हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोग एम्प्लॉय थोड़ी है, किसी के अंडर थोड़ी काम कर रहे हैं. वी आर बिजनेसमैन ना, वी आर रनिंग आवर ओन बिजनेस, तो हमारे अंडर एम्प्लॉयज होंगे, तो हम उनको पे करेंगे ना सैलरी. गॉट इट? तो वी सैलरी फॉर अस इज ऑलवेज एक्सपेंस, नेवर इट इज एन इनकम. कभी भी इनकम नहीं होगी सैलरी हमारे लिए. मोक्ष यादव, Yes, sir. डिविडेंड रिसीव्ड, Dividend is PNL debit. PNL डेबिट. No credit. Sorry. सोच लो, डेबिट में क्या जाता है? What comes in? हाँ, वो तुम पर्सनल अकाउंट का रूल बोल दिया तुमने. ट्रेडिंग और पीएनएल डेबिट में क्या लिखते हो? एक्सपेंस लिखते हो कि इनकम लिखते हो? Expenses. एक्सपेंसेस. सब एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट बंद होके साल के एंड में ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में चले जाते हैं. डेबिट साइड में यू हैव ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में यू हैव ऑल द इनकम. ट्रेडिंग और पीएनएल में दो ही चीज है, एक्सपेंस और इनकम. एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड, इनकम ऑन द क्रेडिट साइड. So it will come on credit side. क्रेडिट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द क्रेडिट साइड. रिवाइज नहीं किया है. ऋतुआ मेहता, टेल मी freight inwards. Freight inward trading debit. Veer Shah, freight outwards. profit and loss debit. Manan Patel, tell me fixed deposit. Where do you write fixed deposit? Assets. Assets. Kashish Sanghvi, bank loan. Kashish, bank loan. Yes. Liability. Very good. Liability. Very good. Kiran Shah, reserves and surplus. Assets. Is it? Liability. Liability. Internal liability, just like capital and current account. Jainam Shah, creditors. Liability. Nirgendra, debtors. Assets. Vidushi, cash and bank balance. Asset. Assets. Yash Vora, outstanding expenses. Liabilities. Very good. Jia Savla, prepaid expenses. Assets. Perfect. Then Gargi Vora, commission receivable, Yes, sir. interest Asset. asset. Any income receivable is asset. मिलना बाकी है. And Jia Shah, interest received in advance, income received in advance. Liability. Liability. Perfect. Ria Lathia, heating and lighting. Will be wages. Huh? Sorry, PNL trading debit. Pakka. हाँ sir. Heating and lighting is trading debit. Correct. Smith Shah, lighting and heating. PNL debit. Vidushi, warehouse charges, go down charges. A PNL debit. PNL. Heath Kamani. Right है ना? हाँ, right. Heath Kamani. Gas, water, electricity. PNL debit. Gas, water, Trading debit. trading debit. Gas, water is all fuel charges, right? You'll need them in factory. Yes. So trading debit. Ansh Mehta, motive Yes, power, motive power. PNL debit. Wrong. पावर किस में लगता है? मोटिव पावर, इंजन का पावर. ऑफिस में लगता है कि फैक्ट्री में लगता है? Factory. तो ट्रेडिंग डेबिट. TD. निशांत पारेख, टेल Yes, मी sir.
Dumerage, PNL debit. PNL debit. Priyansh Dedia, Coal and Coke, Trading debit. trading debit. Correct. Revin Seth, clearing charges. Trading debit. Very good. Pujan Bansali, forwarding charges. PNL debit. Very good. Saisha, unproductive wages. Unproductive wages. So PNL credit. PNL credit. So sorry. This trading credit. Trading credit. Yeah, because they're unproductive. Credit. Trading credit. What do you write on the credit side? Income. So what you gain. What you gain. So Yeah. So it'll be on the debit side. debit side. Now which account? Trading debit ki PNL debit. Unproductive wages. Yeah, in PNL debit side because it's Perfect. unproductive. Unproductive. What about productive wages? That will be on the trading debit side. What comes on trading credit side? The sales. Only sales income. No, incomes are sales. Income. Sales income, right? Yeah, yeah. What comes on PNL credit side? So what, like the same thing, but the unproductive, like the ones which are unproductive. No. Any income apart from sales. Okay. प्रोडक्शन परचेज का कुछ लेना देना नहीं है. एक्सपेंस के लिए वो रूल है, परचेज और प्रोडक्शन वाला. Yes. इनकम साइड पे सेल्स इनकम ही खाली ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा, उसको छोड़ के जो भी इनकम है सब पीएनएल क्रेडिट में जाएगी. इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एवरीथिंग इज पीएनएल क्रेडिट. ओके. प्रियांश कपासी, टेल मी royalties. Trading debit. Very good. Moksh Yadav, commission on sales. PNL credit. Credit. Commission paid है. Commission paid. So PNL on debit. It will be Debit. our expenses. एक्सपेंस है ना, तो डेबिट में ही जाना चाहिए. अब ट्रेडिंग की पीएनएल, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग वाला रूल है तुम्हारे पास, परचेज प्रोडक्शन वाला. रिया पलन, एडवर्टाइजिंग, पीएनएल डेबिट. वेरी गुड. दिशिता मकवाना, टेल मी सेल्स रिटर्न्स. PNL debit. सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न Trading account. क्या करना है ट्रेडिंग में? Returns minus from the sales. हाँ, सेल्स में से माइनस होता है सेल्स रिटर्न. व्हाट अबाउट परचेज रिटर्न्स, फोरम मालविया? Purchase returns. Subtract from purchase or Subtract. trading debit. From purchase, trading debit, correct. Maya, printing and stationery, PNL. debit या credit? हाँ. PNL debit या PNL credit? Debit. Debit. Rutwa Mehta, loan given. Asset. Nishant Parekh, bills payable. Liability. Very good. Virali Doshi, bills receivable. Asset. Assets. Riya Lathia, Yes. current account of partners, normally. So you make it like another account, right? And final balance. So then you add it to the capital, like in the liability side. Don't add it, you show it separately. Yeah, you showed but like under- as capital in the liability. Under liabilities, yes. Correct. Rahul, what about traveling expense? PNL debit. Very good. Sir, one doubt, sir. बोलो.
સર અગર આપણે કોઈ પણ વસ્તુ અગર સેલ કરીએ તો એના જે પણ કેરિયજ કે ફ્રાઇટ ચાર્जेस હોય તો એ કોણ ભરે, આપણે કે સામેવાળી પાર્ટી? Depends on the business. Sometimes majority 90% तो सामने वाला જ भरे. We pay generally purchase related carriage and related carriage सामने वाला पार्टी भरता है. But sometimes some business have some policies, some settings with the buyer. They can decide with the buyer कि भैया थोड़ा कैरेज हम पे करेंगे, अभी मेरे को सेल करना है गुड्स, मैं महाराष्ट्र में हूँ, मेरे को सेल करना है गुजरात में, बायर मेरा गुजरात में, अहमदाबाद में, तो मैं बोलूंगा गुजरात बॉर्डर तक मैं पहुंचा दूंगा, वहां से तुम कलेक्ट कर लेना, तो वहां तक का कैरेज मैं पे करूंगा, उसके आगे का वो पे करेगा, या फिर उसके अहमदाबाद गोडाउन तक मैं पहुंचा के दूंगा, ऐसा डिसाइड किया हुआ है, तो फिर हम भी हमारा ही एक्सपेंस करके कैरेज आउटवर्ड हम पे कर सकते हैं. तो डिपेंड्स ऑन द बिजनेस. कोई बिजनेस मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस खाली खरीदने का पे करता है, बेचने वाला सामने वाला पार्टी पे करता है, तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता है. हमारा एक्सपेंस तभी होगा जब हमने पे करने का डिसाइड किया होगा, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन हमारे बायर के साथ डिसाइडेड. गॉट इट? जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये तो रिटेल में आपको पहुंचा के देते हैं ना डिलीवरी के साथ, बाद में आपसे चार्जेस ले लेते हैं, डिलीवरी चार्जेस. गॉट इट? तो यहाँ पे अगेन वी आर ओनली पेइंग द डिलीवरी पार्ट. We are buying the goods, right? So we are paying the delivery charges. Amazon and Flipkart are simply paying, but हमसे वसूल कर रहे हैं. So who is bearing the expense? We are bearing the expense, delivery का. वैसे कोई ऐसे होते हैं सप्लायर जो आपको घर पहुंच तक पूरा पैसे के साथ एवरीथिंग इंक्लूडेड, वो गुड्स का प्राइस में ही ले लेगा वो लोग, और एवरीथिंग इंक्लूडेड, डिलीवरी अलग से नहीं लेगा, पूरा फ्री डिलीवरी रहता है, फ्री डिलीवरी, आपको घर पहुंच करके देता है प्रोडक्ट. वहां पे हम पे नहीं कर रहे, वो पे कर रहा है. So depends between buyer and seller what terms and conditions they agree on. कितने टाइप के होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस? सेल्स, परचेस और दो ही होते हैं? बस और किस पे होगा? खरीदने पे और बेचने पे. गुड्स खरीदा उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, दैट इज इन ट्रेडिंग डेबिट, और गुड्स बेचा उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, दैट गोज टू पीएनएल. इनवर्ड और आउटवर्ड देगा. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ना, मतलब हमेशा पीएनएल, वो बेचने के लिए ही है. खरीदने का चार्जेस को हम लोग कैरेज बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, दैट विल गोज टू ट्रेडिंग डेबिट. कैरेज या फ्रेट दिया या कैरेज इनवर्ड या फ्रेट दिया है, दैट विल गो टू ट्रेडिंग डेबिट, खरीदने का खर्चा. गॉट इट? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया ना, मतलब वो लोकल गुड्स को बेचने का ही है. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग, दैट इज ऑलवेज पीएनएल डेबिट, गुड्स को बेचने का खर्चा. क्लियर? Dishita Makwana, delivery van expenses. So PNL debit. Nirgindra, discount received. PNL debit. Debit. क्रेडिट सॉरी. इनकम है तो क्रेडिट में ही जाएगी, एक्सपेंस है तो डेबिट में जाएगा. हीत कमानी, फ्रेट आउटवर्ड्स, PNL debit. वेरी गुड. किरण शाह, wages and salaries. Yeah, trading account debit. Very good. Smith Shah, salaries and wages. PNL account. Very good. PNL account side, debit side, expense side. Ansh Mehta, rent paid, rent rates, interest, rent rates and taxes, sorry. PNL. PNL debit, perfect. Priyansh Kapasi, factory rent rates, taxes. Trading debit. Perfect. Priyansh Dedia, factory insurance. PNL debit. Factory insurance. Okay, sorry. Trading debit. Trading debit. Factory means production. So trading debit. Gargi, only insurance. So PNL debit. PNL debit. Saisha, repairs and renewals. So repairs. Only Oh. normal repairs, maintenance, Okay. renewal. So it'll be PNL debit. Always PNL debit. Perfect. Rahul. In theory, it is PNL. No, otherwise practically it is trading.
Depends on what asset. Factory related assets, then trading. Office related assets, then PN. Got it. Rahul, sale of scrap. Sale of scrap. P&L debit. P&L debit. Is it an expense? भंगार बेचा तो पैसा आए. Okay, sorry. So P&L credit. Very good. P&L credit. See, it's very simple to identify the items whenever it is expense or income. आपको क्या है, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे, है कि नहीं? और इनकम जो है, एक ही इनकम ट्रेडिंग क्रेडिट में जाती है, दैट इज सेल्स. उसको छोड़ के जो इनकम है वो पीएनएल क्रेडिट में जाएगी. इनकम का तो लफड़ा ही नहीं है आपको सोचने का ज्यादा. एक्सपेंस साइड पे आपको रूल अप्लाई करना है. क्या ये एक्सपेंस गुड्स को खरीदने पे या बनाने पे हुआ है? इफ द आंसर इज यस, then it is trading debit. If the answer is no, then it is P&L debit. Got it? So apply that one logic and you get the answer. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटीज तो क्लियर है. इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स. देन टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग इक्विपमेंट्स, फिटिंग्स वगैरह. इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट. एंड करंट एसेट्स, stock, debtors, bills receivable, prepaid. On the liability side, you have three parts: capital, internal, reserves and surplus, internal. Second one is loans. Capital पहला internal, capital and reserves internal. Then loans बाहर वाले को देना है, and current liability, short term liability. Okay. Short term assets and short term liabilities are opposite. You can easily remember by opposites. What are debtors assets? तो उसका opposite क्या होगा? सर contingent liability किसमें आएगा? I'll come to that. 1 minute. Debtors are assets, तो creditors कहाँ जाएंगे? Liability. Bills receivable are current asset. एक साल के अंदर पैसा आ जाएगा तो bills payable Liability. liability. एक साल के अंदर देना है. करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की लाइफ कितनी होती है? 1 ईयर से कम होती है. एक साल के अंदर पैसे आ जाते हैं और एक साल के अंदर पैसे देने बाकी हैं. Within 1 year you will repay them. That is what's correct. तो वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस का ऑपोजिट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंस का ऑपोजिट आउटस्टैंडिंग. एक प्रीपेड है, एडवांस में दिया हुआ है, एक देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग. वो एसेट, ये लायबिलिटी. इनकम रिसीवेबल का ऑपोजिट क्या होता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम रिसीवेबल मतलब मिलनी बाकी है. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब एडवांस में इनकम आ गई है, हमें बेनिफिट देना बाकी है. दैट्स आवर लायबिलिटी. शॉर्ट टर्म लोन गिवन का ऑपोजिट? Loan taken. शॉर्ट टर्म लोन टेकन. कैश और बैंक का ऑपोजिट? बैंक ये पैसा अपना पड़ा हुआ है बैंक में, अपना ही बेनिफिट है, अपना ही कैश है, अपना ही एसेट है. और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने उधार लिया हुआ है, हमें देना बाकी है बैंक. कंटिंजेंट लायबिलिटी. व्हाट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी? 11 में हमने सीखा था. रिमेंबर व्हाट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी? डेफिनेशन ऑफ अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. Is an expense in nature और uncertain है, मतलब होगा कि नहीं होगा पता नहीं. It's a liability, not an expense. It's a liability, देना बाकी है. So that liability is But not is it a certain. certain liability? No, it might happen. No, Might circumstance. or might not, depending on certain future event which is uncertain, right? Yes. 1 second. Yeah. What's a contingent liability? It is not an actual liability. पहले दिमाग में ये बिठा लो कि actual liability है ही नहीं. Contingent liability हमारी actual liability है ही नहीं. Contingent liability का एग्जाम्पल देता हूं. समझो आपका कोर्ट केस चल रहा है, बराबर है, और कोई वर्कर ने आप पे केस ठोक दिया है कि मैं इंजर्ड हो गया था आपके फैक्ट्री में, मेरे को 5 लाख रुपया कंपेंसेशन चाहिए. तो आप लड़ रहे हो कोर्ट में, अभी भी फाइटिंग चालू है. अभी जजमेंट कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है. जजमेंट अगर आपके फेवर में आया तो फिर कुछ पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है. लेकिन जजमेंट आपके अगेंस्ट गया तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे टू दैट वर्कर. दिस इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी.
which is dependent on that judgment. May or may not happen. जजमेंट फेवर में आया तो लाइबिलिटी नहीं है, जजमेंट अगेंस्ट गया तो लाइबिलिटी हो गई. तो क्या ये हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी है? आर वी सपोज टू 100% पे इट इन फ्यूचर और 99% 90% भी देने का है क्या? नो, 50-50 चांसेस है, शायद देना पड़े शायद ना देना पड़े. तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी याद रखना कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती है, आपके बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती है. तो कहाँ रिकॉर्ड होती है, कहाँ दिखती है? बैलेंस शीट के नीचे फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद जस्ट एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिखती है वो कि भैया ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, शायद फ्यूचर में हो सकती है, इसका ख्याल रखना. बस जब फ्यूचर में वो एक्चुअल लाइबिलिटी बन जाएगी तब आ जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, तब रिकॉर्ड कर दोगे आप. उसकी एंट्री होती है रिजर्व्स टू कंटिंजेंट लायबिलिटी, रिजर्व्स टू लायबिलिटी. आपके प्रॉफिट कम कर देते हो और लायबिलिटी बढ़ा देते हो. जब रिकॉर्ड करोगे, जब एक्चुअल लायबिलिटी बनेगी तब. आर यू गेटिंग दिस? जब तक वो एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है तब तक वो कहाँ दिखेगी? कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारी बुक्स में दिखेगी नहीं, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त दिखेगी नहीं. पूरा फाइनल अकाउंट रेडी हो जाएगा, उसके बाद एक लाइन में पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के जैसा दिखेगा. इज दिस क्लियर? सो कंटिंजेंट लायबिलिटी का एक और एग्जांपल, लास्ट ईयर हमने ये कोर्ट केस वाला सीखा था, ये साल आपने एक और सीखा हुआ है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. दैट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. अब आपका डेटर अभी क्या ना आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने दिशिता पे बिल ड्रॉ किया, दिशिता इज माय डेटर, शी एक्सेप्टेड द बिल, आई एम द ड्रॉअर, शी इज द एक्सेप्टर. 20,000 का बिल है, मैंने बैंक में डिस्काउंट करवा दिया 19,800 में. अभी आफ्टर 2 months बैंक इज सपोज टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम दिशिता, यस और नो? दिशिता ने अगर पैसा दिया तो बिल विल बी ऑनर्ड, आई एम नॉट एट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिल ऑनर हो गया तो मजा है सबका. बट इफ दिशिता डजंट पे द मनी, द डेटर डजंट पे द मनी, देन बैंक किससे वसूलेगा? हमसे. द हमसे, पर्सन हु ड्रॉवर से डिस्काउंटेड. वसूलेगा, राइट? सो वो लटकती तलवार है हमारे गले पे. It is a type of contingent liability. Discounted BR is a type of contingent liability. म्हणजे काय? Dependent on a future event. What is that future event? Dishita paying the money, the debtor paying the money. If the debtor pays the money, अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपने जेब से 1 रुपया नहीं जाना है. But if Dishita doesn't pay the money, money will go from our account, bank will deduct from our account, yes or no? This is a type of कंटिंजेंट लायबिलिटी. सेकंड एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैंने दिया कोर्ट केस पेंडिंग, दूसरा एग्जांपल है डिस्काउंटेड बीआर. ये भी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, नोट के जैसा दिखता है आफ्टर फाइनल अकाउंट, शायद होगा शायद नहीं होगा. एक और एग्जांपल है कंटिंजेंट लायबिलिटी का, प्रैक्टिकली काफी जगह पे होता है ये यूज. समझो किरण जो है मेरा दोस्त है, किरण ने मुझे बोला कि सर मुझे लोन लेना है बैंक से, लेकिन मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, 5 लाख रुपए का लोन चाहिए मुझे, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्या आप गारंटर बनोगे? मैं पक्का चुका दूंगा. मैं बोला ठीक है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो आई विल बिकम अ गारंटर. आपने सुना होगा गारंटर होता है, गारंटर मतलब पर्सनल लोन्स में ज्यादा होता है ये. अगर किरण ने डिफॉल्ट किया तो बैंक मेरे से पैसा लेगा, आई विल बी एक्टिंग एज अ गारंटर. तो किरण ने लोन ले लिया बैंक से, आई एम द गारंटर ऑफ दैट लोन. अभी इन फ्यूचर अगर किरण लोन चुका देता है तो क्या मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत है? नहीं. बट अगर किरण लोन नहीं चुकाता है तो बैंक किससे पैसा लेगा? मेरे से. तो फॉर मी वो सिमिलर है, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा ही है. अगर किरण चुका दिया तो नो टेंशन, किरण नहीं चुका पाया तो मेरे गले पे तलवार. This is a contingent liability for me, may or may not happen. Is this clear? So it will be shown under notes after the final accounts, information form में दिखेगी. Contingent liability, guarantee given on behalf of third parties, guarantee given on behalf of third parties, that's a contingent liability, may or may not happen. Hope all of you have understood the meaning. Will you record a contingent liability in your final accounts?
No. When will you record it? Whenever it becomes an actual liability, when you are supposed to pay it in future, that time you will record it. Okay, otherwise बाहर ही दिखेगा, बुक्स के बाहर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में दिखेगा. ओके, सो ये फॉर्मेट था. हमने अभी तक क्या सीखा है? फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है? Why do we make final accounts? To calculate the financial position of the Calculate the financial position of the business. Know the financial position, balance sheet, or The profit and loss. profit and loss. No, our profit Result. and loss. एक साल का रिजल्ट, दैट्स योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. ओके, वो जानने के लिए, बराबर है. वो जानने के लिए यू मेक योर फाइनल अकाउंट. अच्छा, उसके बाद व्हाट डू वी मेक टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉसेस? प्रॉफिट और लॉस के लिए कौन से दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएनएल. ट्रेडिंग एंड पीएनएल. प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए दो ही अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग और पीएनएल, जिसमें पूरे साल के सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस एक जगह पे आ जाते हैं. बराबर है. इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड, एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड. ट्रेडिंग अलग बनता है, पीएनएल अलग बनता है. ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए, पीएनएल फाइनल प्रॉफिट फाइनल लॉस के लिए. बट ट्रेडिंग और पीएनएल कंप्लीटली अलग ही है क्या? इज देयर एनी लिंक बिटवीन ट्रेडिंग एंड पीएनएल? Yes. What is the link? What is the link between? The Both are profit for and expenses. Gross profit or Trading is gross actually loss. a part of PNL. Trading close करके कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? डेबिट और PNL. क्रेडिट ऑफ पीएनएल. PNL. ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, ग्रॉस लॉस है तो डेबिट साइड. ओके, सो ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल. पीएनएल के अंदर ट्रेडिंग पड़ा है, उसके बाद आपको फाइनल प्रॉफिट लॉस मिलता है जो जाता है बैलेंस शीट में. ओके, कैपिटल में ऐड हो जाता है, ओनर को बिलोंग करता है वो. अब बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? व्हाई डू वी मेक बैलेंस शीट? to find out the position of the To business. find out the value of business, showing the values of assets and Liabilities. एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दिखाने के लिए. सो यहां तक हमने देखा वैल्यू ऑफ बिजनेस मिलती है. बैलेंस शीट अल्टीमेटली क्या होनी चाहिए? प्रॉब्लम के अंदर बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए? Statement. It should be टोटल क्या होना चाहिए बैलेंस शीट का? the total should tally. Assets Tally. should It's a be Balance tally. sheet should tally. Asset should be equal to liability. That means you have done your sum correctly. Okay. Now there is something that is called as adjustment. There is something called as adjustment. आपने देखा होगा पेज नंबर 13 या 14, फर्स्ट पेज ऑफ द थियरी अगर आप ले लो, टेक द फर्स्ट पेज ऑफ द थियरी. बंसी जोशी वीडियो ऑन चाहिए, अदरवाइज आउट. I'll tell your mom to message me. page number 20. फाइनल अकाउंट्स का फर्स्ट पेज ऑफ थियरी, एकदम फर्स्ट, जहां से हमने स्टार्ट किया था. दिख रहा है? उसमें क्या लिखा हुआ है? वेरी फर्स्ट पेज, पेज नंबर आई थिंक इट वाज 16. या उसमें ऊपर पढ़ो. द क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. कैन यू ऑल सी दैट? द क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस? लास्ट ईयर भी हमने लर्न किया था. व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस? Trial balance. ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट. ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम का कितना इफेक्ट होता है इन द फाइनल अकाउंट? वन. रिकॉर्डेड आइटम, सो जस्ट वन इफेक्ट. वेयरएज एडजस्टमेंट्स का कितना इफेक्ट होता है? टू. Why? What are adjustments? Now we are learning the adjustments. What do you mean by adjustments? Unrecorded. अनरिकॉर्डेड. Unrecorded entries. Adjustments are nothing but unrecorded entries. तो अगर आपको जर्नल एंट्री आती है ना, तो वही दो इफेक्ट आपको फाइनल अकाउंट्स में देने हैं एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट्स आर अनरिकॉर्डेड एंट्रीज, जिसको हम जर्नल वाले रूट से नहीं लेके जाते कि पहले जर्नल में डालेंगे, फिर लेजर में डालेंगे, फिर वापस नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर वापस फाइनल अकाउंट. ये लॉन्ग कट नहीं लेते, शॉर्टकट लेते हैं. एडजस्टमेंट को डायरेक्टली वीआईपी एंट्री मिलती है इन फाइनल अकाउंट. एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, उसको डायरेक्टली हम फाइनल अकाउंट में घुसा के रिकॉर्ड कर देते हैं. ओके, so every adjustment will have how many effects?
every adjustment will have two effects. Two or more than two. Directly, एक डेबिट और एक क्रेडिट डायरेक्ट एंट्री देते हैं फाइनल अकाउंट में, दे आर कॉल्ड एज एडजस्टमेंट्स. इज दिस पार्ट क्लियर? ऐसी कोई सेट लिस्ट नहीं है, आपको सिलेबस में 20-22 एडजस्टमेंट्स है अभी यहाँ पे दिए हुए हैं, 22-23 एडजस्टमेंट, बट ऐसी कोई स्टैंडर्ड लिस्ट नहीं होती है एडजस्टमेंट की कि भैया यही एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट इज एनी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जिसको आप डायरेक्टली फाइनल अकाउंट स्टेज पे एंटर करते. बात समझ में आ रही है? कोई भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है जिसको डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में एंटर करते हो उसको बोला जाता है एडजस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. मेरे को बताओ, आपने 5,000 का गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है, क्रेडिट पे. व्हाट इज द फॉर बाइंग द गुड्स ऑन क्रेडिट? स्टॉक परचेज में ऐड होगा और क्रेडिटर्स में एंट्री बोलो, जर्नल एंट्री पूछा मैंने. परचेज टू क्रेडिट. परचेज टू क्रेडिटर. इज दैट क्लियर? 5,000 का गुड्स आपने खरीदा है, परचेज टू क्रेडिटर. अब ये नॉर्मल रूट से जाता तो क्या होता? पहले जर्नल में जाता या परचेज बुक में जाता, परचेज टू क्रेडिटर. फिर वहां से परचेज अकाउंट में डेबिट में जाता, क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट में जाता, वहां से ट्रायल बैलेंस में आता और वहां से सीधा फाइनल अकाउंट में चला जाता. परचेज मतलब ट्रेडिंग डेबिट, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी. बट यही चीज अगर आप डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में घुसाना चाहते हो, लॉन्ग कट ना लेके डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में एंटर करना चाहते हो, तो कैसे घुसाओगे इस आइटम को? सोचो. Add to परचेज, add to credit. Add to purchase and add to creditor. एब्सोल्युटली राइट. ऐड टू परचेज एंड ऐड टू क्रेडिटर. मैंने क्या किया? परचेज कहाँ दिखता है आपको? इन योर फाइनल अकाउंट. वेयर डू यू राइट परचेजेस? Liability. Purchases are liability. Trading debit. Trading debit, biggest expense directly related to purchase. Direct expense. तो ट्रेडिंग डेबिट में दिखता है, वहां पे परचेज है ऑलरेडी 1 लाख रुपीस का समझो. उसमें आप क्या करोगे? ये 5,000 ऐड कर दोगे, 1,05,000 हो जाएगा, है कि नहीं? अनरिकॉर्डेड था ना, अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करोगे तो परचेज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. तो ऐड टू परचेज. अच्छा, क्रेडिटर को पैसा देने का बढ़ेगा कि घटेगा? अगर रिकॉर्ड कर रहे हो क्रेडिटर को तो It will increase. बढ़ेगा. तो क्रेडिटर कहाँ दिखता है? इन योर फाइनल अकाउंट्स. वेयर डू यू शो क्रेडिटर? Liability. Liability. तो ये 5,000 आप क्या करोगे? क्रेडिटर में ऐड कर दोगे. डायरेक्ट वीआईपी एंट्री. दिस इज व्हाट यू डू इन केस ऑफ एडजस्टमेंट. इज दिस क्लियर? तो जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए. अगर जर्नल एंट्री आती है तो एडजस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली आ गए. आप समझ लो. 90% ऑफ द जर्नल एंट्रीज आर ओनली एडजस्टमेंट एंट्री, कुछ अलग नहीं. 10% थोड़े अलग है, वो क्या है मैं आपको बता दूंगा. ये समझ में आया आपको पहला वाला? अब वही लाइंस में मुझे सोच के बताओ, आपने अगर डेटर को गुड सेल किया है और वो अनरिकॉर्डेड रह गया, व्हाट इज द Debtor जर्नल will increase. गुड्स ऑन क्रेडिट? Debtor to sales. Debtor to sales. Debtor to sales. Let us say the amount is 6,000. 6,000 के गुड्स आपने बेचे थे, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए जर्नल में. अब क्या वापस जाओगे जर्नल टू लेजर टू ट्रायल बैलेंस टू फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट बना रहे हो तभी पता चला ये अनरिकॉर्डेड है, डायरेक्टली घुसाओ फाइनल अकाउंट में, उधर ही रिकॉर्ड कर दो, काम खत्म. कैसे घुसाओगे इसको फाइनल अकाउंट में? सोचो. Debtor will increase, sales will increase. डेटर विल इंक्रीज, सेल्स विल इंक्रीज. व्हाई? अनरिकॉर्डेड सेल्स था ना. सर अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो ब्लैक हुआ ना? क्या? रिकॉर्ड नहीं किया तो ब्लैक का ना? रिकॉर्ड नहीं किया कंप्लीटली तो ब्लैक का हो गया, लेकिन वो कैश में होना जरूरी है. बैंक से किया रहेगा ना तो लफड़ा है. फिर बैंक में पैसा आ गया डेटर का तो वो एज गुड एज रिकॉर्ड हो जाएगा. कैश वाला होना चाहिए. डेटर से कैश में लोगे, कैश में बेचोगे तो खत्म, फिर 12 बारी खत्म. तो ब्लैक. अभी डेटर टू सेल्स. डेटर टू सेल्स कैसे घुसाओगे फाइनल अकाउंट में? ये सेल्स इनकम सोचने का. वेयर डू यू राइट सेल्स इन योर फाइनल अकाउंट? Trading credit. तो वहां पे ये सेल में घुसाऊंगा तो सेल बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. अनरिकॉर्डेड था ना, 1 लाख का सेल था समझो, उसमें और 6,000 का रिकॉर्ड किया तो 1,06,000 हुआ कि नहीं? तो ये 6,000 ऐड टू सेल अंडर ट्रेडिंग क्रेडिट. इज दिस क्लियर?
व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? डेटर बढ़ेंगे कि घटेंगे? सेल किया है अभी, डेटर बढ़ेंगे कि घटेंगे? पैसा लेने का बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो सोचो। It will increase. इट विल इंक्रीज, बढ़ेगा तो क्या करना है? डेटर में ऐड करना है कि लेस करना Add. है? ऐड करना है। किधर दिखते हैं डेटर्स इन योर फाइनल अकाउंट? वेयर डू यू शो योर डेटर्स इन योर फाइनल? एसेट। एसेट। तो एसेट में ये 6000 ऐड हो जाएगा आपका। इफेक्ट समझा एडजस्टमेंट का? फर्स्ट इफेक्ट इज ऐड टू सेल, सेकंड इफेक्ट इज ऐड टू डेटर्स, बिकॉज इट वाज एन अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड परचेज है तो क्या करना है? अनरिकॉर्डेड परचेज है तो क्या करना है? Add to purchase. ऐड टू परचेज एंड ऐड टू Creditor. क्रेडिटर। लॉजिक समझा क्यों? परचेज एक्सपेंस बढ़ेगा और क्रेडिटर को पैसा देने का बढ़ेगा। डिड यू गेट दीज टू? अभी रीड करो, आ जाओ एडजस्टमेंट वाले पेज पे सब लोग नीचे, उसमें आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 8 एंड 9 जो अभी मैंने डिस्कस किया, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 8 एंड 9। देखो क्या दिया एडजस्टमेंट नंबर 8 में, पढ़ो। अनरिकॉर्डेड परचेज मिला आपको? They are credit purchase of goods which are already included in the stock but not recorded. एंट्री रिकॉर्ड करना रह गया आपका। इफेक्ट कैसे दोगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू परचेज एंड लायबिलिटीज में ऐड टू क्रेडिटर्स। यही हमने किया यहाँ पे, दिखा? वैसे ही एडजस्टमेंट नंबर 9 देखो, अनरिकॉर्डेड सेल्स, दे आर द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स विच आर ऑलरेडी डिस्पैच्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए हो, कैसे रिकॉर्ड करोगे? सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड टू सेल, दूसरा एसेट्स में ऐड टू डेटर। इज दिस क्लियर? नाउ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस, ये आपको है नहीं बट स्टिल दिमाग लगाओ। What if you buy the goods for cash and you forget to record? What is the entry for cash purchase? Add to cash एक and मिनट, एंट्री बोलो पहले। cash to sales. कैश परचेज की एंट्री। Purchase to cash. परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, इसी को घुसाना है फाइनल अकाउंट। Add to Add to purchase. cash. Add to Purchase. purchase. Add from cash. परचेज, परचेज में from ऐड cash. करना है, परचेज बढ़ेगा। कैश क्या होएगा? सोचो जरा। घटेगा। Subtract होगा। अरे भाई गुड्स खरीद रहे हो तो पैसा भी आएगा क्या कि जाएगा? जाएगा। जाएगा ना। पैसा बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा ना, तो लेस फ्रॉम कैश। ये क्रेडिट हो रहा है, दिख रहा है? कैश इज गेटिंग क्रेडिटेड। ये यहां से भी रूल अप्लाई कर सकते हो। एसेट का रूल क्या है? बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। लायबिलिटी का रूल क्या है? बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट। यहाँ पे एसेट क्रेडिट हो रहा है, एसेट घट रहा है। और एक्सपेंस का रूल क्या है? बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, बढ़ा मतलब ऐड, घटा मतलब माइनस। गॉट इट? कैश सेल की एंट्री क्या होती है? कैश सेल्स की एंट्री Sales to cash. Cash to sales. परमात्मा एकदम परमात्मा। Cash to sales. कैश टू सेल्स, पैसा आता है, इनकम क्रिएट होती है। अब सोचो कैश टू सेल को घुसाना है आपको फाइनल अकाउंट में, कैसे घुसाओगे? वीआईपी एंट्री। कैश में भी कैश में ऐड होगा। कैश बढ़ेगा ना, हाँ। घटेगा? अभी सोचो, बेचा है तो पैसा आया है, तो ऐड टू कैश एंड सेल्स में भी प्लस होगा। सेल्स में प्लस होगा कि माइनस होएगा? प्लस प्लस होएगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्लस ऐड टू सेल्स। इज दिस क्लियर? दिस इज हाउ यू एंटर द एडजस्टमेंट, प्लस माइनस करके। समझ में आ रहा है कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्री। टेल मी द एंट्री फॉर सैलरी पेड। Salary to cash. सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश। समझो मैंने 8000 की सैलरी पे की थी साल में, लेकिन बुक में एंट्री करना भूल गया। डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में घुसाना है। Add to salary. Add less to from salary, cash. subtract सैलरी का salary and खर्चा बढ़ subtract गया from है तो cash. ऐड टू सैलरी होना चाहिए, बराबर है। और कैश बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा, तो प्लस की माइनस? माइनस फ्रॉम कैश। Minus. पैसा जा रहा है, राइट? पैसा जा रहा है, माइनस फ्रॉम कैश। समझ में आ रहा है इफेक्ट? ऊपर से जा रहा है बाउंसर। एनीवन?
Is not understanding at all. Please tell me. थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा सर है? What are एडजस्टमेंट में कैश के नीचे क्या लिखेंगे? लेस सैलरी पेड. less salary paid? You can write adjustment in your own words. Freedom. Salary में लिखो add unrecorded salary. Cash में लिखो less unrecorded salary. Salary में लिखो add salary paid. Cash में लिखो less salary paid. Adjustments you can write them in your own words. Okay. Next one. Tell me. आपने अनरिकॉर्डेड मुझे क्रेडिट सेल्स का बताया अभी अभी. ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स डेटर टू सेल्स है, बराबर है. व्हाट इफ इट इज अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न्स? व्हाट इज अ जर्नल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न? Sales return to debtor. सेल्स रिटर्न टू डेटर होता है, ये किया हुआ है 11th में हमने. सेल्स रिटर्न टू डेटर याद है आपको? डेटर ने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न टू डेटर. इसको घुसाना है आपको फाइनल अकाउंट्स में. Sales less from that. Sales plus देखो अनरिकॉर्डेड सेल्स था तो क्या किया था? दोनों में ऐड किया था, ऐड टू सेल ऐड टू डेटर. अभी सेल्स रिटर्न हो गया है तो क्या करने का? Minus. सेल्स भी कम होएगा तो माइनस फ्रॉम सेल, और डेटर भी कम. डेटर भी कम होएगा, डेटर से पैसा लेने का कम हो जाएगा तो माइनस फ्रॉम डेटर. आर यू गेटिंग दिस? वैसे ही अनरिकॉर्डेड परचेज आपने मुझे बोला क्या करना है? ऐड टू परचेज ऐड टू क्रेडिटर करना है. व्हाट इफ इट इज अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न. क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न होता है एंट्री, राइट? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न होता है, तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न को घुसाओगे कैसे आप फाइनल अकाउंट? Add to credit. Subtract from Less from creditor. subtract from creditor and then subtract from purchase. लेस फ्रॉम क्रेडिटर लेस फ्रॉम परचेज. लेस फ्रॉम परचेज क्यों? परचेज रिटर्न हो गया, कम हो गया ना परचेज, लेस फ्रॉम परचेज. और क्रेडिटर से क्रेडिटर को पैसा देने का बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा. आपने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर दिया, क्रेडिटर डेबिट हो रहा है ना. लायबिलिटी घटी तो डेबिट, क्रेडिटर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिटर कम हो गया तो माइनस फ्रॉम क्रेडिटर्स. व्हाट दिस? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? एडजस्टमेंट कैसे करना है? बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज. अब मुझे बताओ व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी? Depreciation to machinery. ये आपने किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड, पूरा चैप्टर ही है डेप्रिसिएशन, राइट? तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी इज द एंट्री. इज दिस राइट? कोई भी एसेट का डेप्रिसिएशन एंट्री से डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर डेप्रिसिएशन. लॉजिक क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ा और एसेट घटा. डेप्रिसिएशन का मतलब मालूम है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? एसेट का वैल्यू कम हो जाता है. अब फर्नीचर लेके आते हो 1 लाख रुपए का, बराबर है? 10 साल की लाइफ है, 10 साल की लाइफ है. क्या 10 साल के अंत तक 1 लाख का रहेगा? कि थोड़ा थोड़ा कम होगा हर साल? कम होगा ही ना. वापरोगे तो कम होगा ही. दैट रिडक्शन इन द वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? हर साल के एंड में हम ये एंट्री मारते हैं. डेप्रिसिएशन, खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. आर यू गेटिंग दिस? एंड एसेट घटा तो क्रेडिट. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 5000, बराबर है? इसको घुसाना है इन योर फाइनल अकाउंट. कैसे घुसाओगे? सोचो. लेस फ्रॉम मशीनरी एंड ऐड टू डेप्रिसिएशन. लेस फ्रॉम मशीनरी क्योंकि एसेट कम हो रहा है. Then P&L debit. पीएनएल डेबिट में डेप्रिसिएशन किधर आता है? सर अलग से डेप्रिसिएशन बना के उसमें मशीनरी अकाउंट लिखेंगे. या फिर रहेगा तो ऐड करने का. पीएनएल डेबिट डेप्री में ऐड कर दो या डेप्री अलग से लिख दो. तो पीएनएल डेबिट में लिख दो डेप्रिसिएशन. अगर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन है तो उसमें ऐड कर दो. पीएनएल डेबिट में लिख दो अलग से, नहीं तो डेप्रिसिएशन. इज दिस क्लियर? That's your adjustment number 2. All of you see that. All of you see that. Sir, अगर depreciation already दिया हुआ है तो One minute. I'll come to the doubt. Second adjustment देखो सब लोग. Second adjustment read करो. Depreciation. It is the reduction or decrease in the value of assets due to wear and tear. It is a loss for the business. And you all see that? एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन टू मशीन. इफेक्ट क्या है? देखो उधर ध्यान से. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन जाता है पीएनएल डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड
एसेट्स में से लेस करना है, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट्स। मिला आपको? हेलो, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? यस विदुषी, व्हाट वाज योर डाउट? So what if depreciation is given in the trial balance only? Then one effect, P&L debit, recorded item. As already recorded है ना, चैप्टर में तुमने किया था, याद है? डेप्री टू मशीन, डेप्री में टू मशीन, मशीन में बाय डेप्री, और फिर डेप्री रिकॉर्ड हो गया ना अभी, और फिर ईयर एंड पे क्या लिखते थे डेप्री अकाउंट में? बाय P&L, याद है? और P&L में क्या आएगा? टू डेप्रीसिएशन। विल यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एसेट अगेन? नो, बिकॉज इट हैज बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड ना, एसेट कम हो चुका है ना रिकॉर्ड होके। डेप्रीसिएशन टू मशीन की एंट्री हो चुकी है, एसेट क्रेडिट हो गया है, मतलब एसेट कम हो चुका है। रिमेंबर? तो रिकॉर्डेड है ट्रायल बैलेंस में तो वन इफेक्ट, P&L डेबिट। अनरिकॉर्डेड, ये सब हम अनरिकॉर्डेड करते हैं, रिकॉर्डेड वाले पे भी मैं आता हूँ, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अनरिकॉर्डेड है, सब अनरिकॉर्डेड है, तो कितना इफेक्ट रहेगा? वन इफेक्ट की टू इफेक्ट्स? टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट है, एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट। इधर देख रहे हो, एक डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, मशीनरी क्रेडिट हुआ, जर्नल एंट्री एक क्रेडिट। प्लस माइनस विल डिपेंड ऑन योर आइटम। कोई आइटम में दोनों प्लस होगा, कोई में दोनों माइनस होगा, किसी में एक प्लस एक माइनस, किसी में माइनस प्लस। माइनस प्लस का कोई गारंटी नहीं है। ओके, डेबिट और क्रेडिट, वन इफेक्ट इज डेबिट, वन इफेक्ट इज क्रेडिट। माइनस प्लस आपको लॉजिकली सोच के करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का ऑपोजिट क्या होता है? Appreciation. तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपने देखी, इट इज डेप्रिसिएशन टू मशीन। तो अप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? समझो लैंड अप्रिशिएट हुआ, भाव बढ़ गया है, तो एंट्री, जर्नल एंट्री बोलो पहले मेरे को। Land to appreciation. लैंड टू अप्रिसिएशन, लैंड टू अप्रिसिएशन, लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो लैंड डेबिट किया, एसेट डेबिट हुआ, मतलब बढ़ा। और अप्रिसिएशन क्या है बिजनेस का? Income. इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट। लैंड टू अप्रिसिएशन, ये एंट्री आप भूल गए रिकॉर्ड करना, तो घुसाना है फाइनल अकाउंट में। कैसे घुसाओ? Add to land. Add to land and To what? asset and credit. And Add to P&L credit. P&L credit. P&L credit. Where will you show appreciation? Trading credit या P&L credit? Which place? P&L credit. Why P&L credit? Why not trading Because credit? it's an income and not an expense. Indirect income. Indirect income, not a direct income, right? So trading credit में तो एक ही है sales income, तो बाकी सब income P&L credit, that's appreciation. See that is your adjustment number 4, number 3, sorry. Appreciation, adjustment number 3. It is an increase in the value of asset, it is a gain for the business. Can you see that? इफेक्ट क्या होंगे? P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, बिकॉज अप्रिसिएशन इज इनकम। ऑलरेडी है तो ऐड कर दो, नहीं है तो अलग से दिखाओ। P&L क्रेडिट में है तो इनकम ही ना, तो P&L क्रेडिट में अप्रिसिएशन में ऐड कर दो या फिर अलग से दिखाओ। एंड एसेट्स, एसेट्स में ऐड टू रिस्पेक्टिव एसेट्स। 4 एडजस्टमेंट समझा मैंने अभी तक, 4 करवाया आपको। क्या 4 एडजस्टमेंट सीखा है हमने? अनरिकॉर्डेड परचेज सीखा, अनरिकॉर्डेड सेल सीखा, डेप्रिसिएशन सीखा, अप्रिसिएशन सीखा। आर दीज आइटम्स क्लियर? ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट वन, लिसन वेरी केयरफुली। अंश मेहता, प्रियांश डेडिया, वीडियो ऑन, सबका वीडियो ऑन चाहिए। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट वी गो टू is the goods का एडजस्टमेंट। लेट अस से गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर। आपको याद है आप एंट्री करते थे गुड्स लॉस्ट बाय फायर की? क्या थी जर्नल एंट्री फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर? Was lost by fire to Lost by fire to goods. Lost by fire. Lost by fire to goods lost by fire. Lost by fire to goods lost by fire. This was the journal entry. याद है? लॉस, एक्सपेंस बढ़ा, गुड्स, एसेट घटा, या फिर आपका परचेज एक्सपेंस कम हो रहा है। ये गुड्स जा रहा है मतलब आपका इनडायरेक्टली परचेज का खर्चा कम हो रहा है। इस गुड्स के जगह यू कैन ऑल्सो यूज परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर टू परचेज। अब इसको घुसाना इन द फाइनल अकाउंट, लॉस बाय फायर टू परचेज। कैसे घुसाओ?
P&L Loss debit by fire, and P&L That comes debit. sales and then less P&L debit. लॉस बाय फायर कहाँ जाता है? वेयर डू यू राइट लॉस बाय फायर? P&L PNL debit. debit. पीएनएल P&L डेबिट, debit. उधर जाके लॉस बढ़ गया, पीएनएल डेबिट में डाल दो उसको, लॉस बाय फायर. व्हाट अबाउट गुड्स लॉस बाय फायर? Trading account credit. Trading व्हाई account ट्रेडिंग minus. क्रेडिट? इसका Instead of लॉजिक, deducting from purchase, we will write directly trading credit. instead of deducting from purchase, we'll write it on trading credit. Why the hell do we deduct it from purchase? Because our expenses स्टॉक कम decreasing. हुआ ना उसमें. देखो, परचेज भी एक्सपेंस ही तो था, लॉस बाय फायर भी एक्सपेंस ही है. मैं क्या कर रहा हूं? परचेज को घटा रहा हूं और लॉस बाय फायर को बढ़ा रहा हूं. एक एक्सपेंस को घटा रहा हूं, दूसरे एक्सपेंस को बढ़ा रहा हूं. व्हाई एम आई डूइंग दिस? लेट इट बी ना इन परचेज ओनली. तो वो हमारे ऐसे पोर्शन में नहीं है ना. इसमें नहीं है. मतलब ऐसे सिलेबस में नहीं है ना कि जीपी बढ़ purchase जाएगा में ना सर, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा. हाँ बराबर. अगर मैंने नहीं हटाया तो क्या होगा? परचेज में ही रहने दिया तो Matching concept violate. एक तो मैचिंग कंसेप्ट वायलेट होगा. बराबर है, एब्सोल्युटली राइट. कैसे मैचिंग कंसेप्ट वायलेट हो रहा है आपका? Because the purchase, the income expense from purchase and the income from sales will not be equal because these goods are lost by fire. They are not sold to someone. एब्सोल्युटली राइट. दीज गुड्स आर लॉस्ट एंड नॉट सोल्ड. तो ये महामंत्र याद रखना परचेज का. परचेज में कौन सा परचेज दिखना चाहिए? जो गुड्स आपने बेचा है तो ही मैच होगा ना. अगर आपने 80,000 के गुड्स खरीदे हैं और उसमें से 80 के 80 बिक चुके हैं तो बराबर है. 80,000 उसको बेचा 90 में, तो 80,000 का परचेज 90,000 का सेल मैच हो रहा है. बट 80,000 का गुड्स खरीदा, उसमें से 10,000 का गुड्स लॉस्ट हो गया फायर में, तो बेचा कितना होगा आपने? 70,000 का ही बेचा होगा. तो कैन आई शो 80,000 का परचेज एंड 70,000 का सेल्स? नॉट पॉसिबल. आई हैव टू मैच माय परचेज विथ माय सेल्स. और दूसरी चीज, अबनॉर्मल आइटम हम लोग ट्रेडिंग में नहीं लिखते. आपको मैंने तभी भी बोला था फॉर्मेट डिस्कस करते वक्त, एनी अबनॉर्मल एक्सपेंस लाइक लॉस बाय फायर, गुड्स गिवन एज सैंपल, डोनेशन, चैरिटी के लिए गुड्स दिया है, ये सब ट्रेडिंग में नहीं लिखते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपने घुसा दिया समझो परचेज में, लॉस बाय फायर रहने दिया, तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा या ग्रॉस लॉस हो जाएगा. आपको लगेगा बिजनेस खराब कर रहा है, बट इज द बिजनेस डूइंग बैड? क्या लॉस बाय फायर हर साल होगा? क्या लॉस बाय फायर हर साल होने वाला है? नहीं. तो इसलिए आप क्या करते हो? उसको परचेज में से कम कर देते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस में से कम कर देते हो और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ा देते हो. सो सब में क्या करना है? परचेज में से माइनस नहीं करना है, ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखाना है. ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखाना मतलब इनडायरेक्टली परचेज में से लेस हो रहा है. सो वन इफेक्ट of loss by fire is P&L debit and second effect is trading credit. ट्रेडिंग क्रेडिट मतलब इनडायरेक्टली आप परचेज में से लेस कर रहे हो वो गुड्स. परचेज में से क्यों लेस किया? क्योंकि ये गुड्स सेल नहीं हुआ, ये गुड्स जल गया. ये गुड्स सेल नहीं हुआ, ये गुड्स जल गया. क्या हर साल जलेगा गुड्स? नो. वन टाइम है ना, तो परचेज में से रिमूव करके रख देने का, उधर मैचिंग, तो आपको बराबर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. आप साल दर साल ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर कर पाओगे, अच्छा कर रहा है कि बुरा. तो अबनॉर्मल गुड्स कोई भी हो ना, परचेज में से निकाल देना है. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, गुड्स लॉस बाय फायर. ये लॉस बाय फायर वाला एग्जांपल समझा आपको क्या हुआ? आप इन शॉर्ट क्या कर रहे हो? परचेज में से निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो और लॉस बाय फायर में ऐड कर रहे हो. परचेज में से लेस करने के बदली हम लोग ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखा रहे हैं. ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखाओ या परचेज में से लेस करो, इफेक्ट तो सेम हुआ, बात तो वही हुआ. डेबिट में से माइनस करो या क्रेडिट में दिखा दो, ग्रॉस प्रॉफिट सेम ही आएगा ना आपका. तो इसीलिए ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखाना है, क्योंकि परचेज में से लेस वाला फॉर्मेट आपको नहीं है. अभी 11-12 में परचेज में से लेस नहीं कर सकते. हायर स्टैंडर्ड्स में परचेज में से लेस ही करोगे आप इस चीज को, बट 11th और 12th में परचेज में से लेस करने वाला चीज अलाउड नहीं है. बोर्ड इज फॉलोइंग दिस फॉर्मेट. विच फॉर्मेट? ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखाने वाला फॉर्मेट. सो इफेक्ट क्या देनी है गुड्स लॉस बाय फायर की? गुड्स लॉस बाय फायर का दो इफेक्ट क्या होगा? वन इज लॉस बाय फायर, P&L डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ाओ, एंड ट्रेडिंग क्रेडिट, डायरेक्ट एक्सपेंस घटाओ, परचेज वाला एक्सपेंस घटाओ. इज दिस क्लियर?
So P&L debit and trading credit. This is for goods lost by fire, floods, theft. कोई भी goods lost हुआ, सबका सेम इफेक्ट है. बात समझ आई? दूसरा सिमिलर एग्जांपल आपने सीखा था 11th में, गुड्स गिवन एज सैंपल्स. व्हाट इज द एंट्री फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स? Advertisement to goods distributed. Advertisement to goods distributed as sample. ये भी सेम लाइन पे सोचो, क्या ये गुड्स बेचे हैं आपने कि ये गुड्स सैंपल के फॉर्म में दे दिए किसी को? फ्री सैंपल. आपने 1 लाख का परचेज किया था, उसमें से 10,000 का गुड सैंपल में दे दिया, तो बेचा कितना होगा? 90,000 का. तो क्या 1 लाख के अंदर वो 10,000 रहने दूं कि निकाल दूं मैं वहां से? व्हाट डू यू थिंक? निकाल देना बेटर है ना, क्योंकि वो बेचा नहीं है आपने, वो गुड्स फ्री सैंपल में दिया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगेन फॉलोइंग मैचिंग. सेल्स और परचेज को मैच करोगे तो ही जीपी परफेक्ट आएगा. जीपी परफेक्ट आएगा तो ही कंपैरिजन पॉसिबल होगी जीपी की साल दर साल. सैंपल आप कभी दोगे, कभी नहीं दोगे. अब नॉर्मल आइटम है, सम ईयर्स यू गिव, सम ईयर्स यू डोंट गिव सैंपल्स. तो क्या होगा? ऑन द सेम लाइंस, कैन यू थिंक एंड टेल मी द इफेक्ट ऑफ गुड्स गिवन? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड ऐड टू एडवर्टाइजमेंट. ये वो क्या था? लॉस बाय फायर था. ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट के लिए गया है. व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस? इज इट अ डायरेक्ट एक्सपेंस और एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट. कहाँ दिखता है? P&L डेबिट में दिखता है. और सेकंड इफेक्ट क्या होगा? परचेज में ऐड करना है कि लेस करना है? लेस. बट डायरेक्टली परचेज में से लेस मत करना. सुन रहे हो? परचेज में से लेस मत करना डायरेक्टली. उसकी जगह कहाँ दिखाना है? ट्रेडिंग क्रेडिट. गुड्स गिवन एज सैंपल. गुड्स गिवन एज सैंपल. आप परचेज में से लेस ही हो रहा है, इनडायरेक्टली परचेज में से लेस ही हो रहा है, प्रेजेंटेशन के लिए खाली ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखाना. सो ध्यान से देखोगे ना तो दोनों एडजस्टमेंट का इफेक्ट सेम है. कैन यू सी दैट? क्या किया हमने? परचेज को कम किया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बढ़ाया. ट्रेडिंग वाले खर्चे को कम किया, P&L वाले खर्चे को बढ़ाया. तो फॉलो मैचिंग. आर यू लिसनिंग? बताओ मुझे. गुड्स लॉस बाय फायर, फ्लड्स, थेफ्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट? Trading credit and Trading credit and P&L debit. Debit. By fire. वैसे ही गुड्स गिवन एज सैंपल्स, व्हाट विल बी द टू इफेक्ट? P&L debit. P&L डेबिट एंड ट्रेडिंग क्रेडिट. Trading फर्क क्या है? खाली उधर लॉस बाय फायर है, इधर एडवर्टाइजमेंट है. दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. बात समझ आई? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. ओनर बिजनेस में से गुड्स लेके गया. trading credit and एंट्री capital बोलो में से पहले. will व्हाट इज द subtract. एंट्री फॉर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज? ड्राइंग टू परचेज. ड्रॉइंग्स टू गुड्स विड्रॉन या ड्रॉइंग्स टू परचेज, बराबर है. ड्रॉइंग्स टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या ड्रॉइंग्स टू परचेज. इसको घुसाना है फाइनल अकाउंट में डायरेक्टली. पहली चीज तो श्योर है कि गुड्स जा रहे हैं, तो परचेज में से लेस करना है. परचेज में से लेस करने के बदले कहाँ डालोगे उसको? ट्रेडिंग क्रेडिट. ट्रेडिंग क्रेडिट. वन इफेक्ट इज डेफिनेटली ट्रेडिंग क्रेडिट. अब सोचो दूसरा इफेक्ट. वेयर आर द में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ड्रॉइंग Less से from ड्रॉइंग capital. लेस फ्रॉम कैपिटल करते थे, याद है? बट यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया होगा, yesterday I told you, will you deduct it from capital or will you make a capital account? Current account. कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाते थे आप. अभी 12th स्टैंडर्ड में आप कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने वाले हो. तो जो चीज लेस करनी हो, विच साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट? डेबिट साइड. तो कैपिटल अकाउंट में से लेस करने के बदले यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. इनडायरेक्टली कम ही हो रहा है कैपिटल. 11th में आप लोग लेस करते थे, 12th में आप लोग वही चीज अकाउंट में दिखा रहे हो. जो चीज लेस होनी थी वो डेबिट, जो चीज ऐड होनी थी वो क्रेडिट. इज दिस क्लियर? तीनों आइटम्स का मतलब समझा? 11th में भी था आपको सेम एडजस्टमेंट्स था. गुड्स फायर, गुड्स गिवन एज सैंपल, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. देखो, दीज आर योर एडजस्टमेंट नंबर 12, 13 and 14. Look at adjustment number 12, 13 and 14. 12th adjustment. They are the goods which are distributed as free samples for the purpose of advertisement. मिला? तो इफेक्ट क्या होगा? ट्रेडिंग क्रेडिट, P&L डेबिट. डायरेक्ट एक्सपेंस कम करो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ाओ. दूसरा वाला गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज.
They are the goods which are withdrawn by partner for their personal use. Trading credit का मतलब परचेज कम हो रहा है, ट्रेडिंग क्रेडिट. एंड कैपिटल और करंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स बढ़ गया. तीसरा वाला 14th वन, गुड्स लॉस बाय फायर अनइंश्योर्ड. व्हाट इज द एंट्री? लॉस बाय फायर टू गुड्स लॉस बाय फायर. बराबर है. तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ा, लॉस बढ़ा, और गुड्स का एक्सपेंस कम हुआ, परचेज एक्सपेंस कम हुआ. क्यों परचेज कम कर रहा हूं मैं घड़ी घड़ी? क्योंकि मैचिंग करना है. मैचिंग करूंगा तो करेक्ट जीपी मिलेगा, करेक्ट जीपी मिलेगा तो कंपेयर कर पाऊंगा. इज दिस क्लियर? तो परचेज में से लेस करने के बदले ट्रेडिंग क्रेडिट. वन इफेक्ट इज ट्रेडिंग क्रेडिट, दैट इज कॉमन. सेकंड इफेक्ट इज पीएनएल डेबिट. इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ा, डायरेक्ट एक्सपेंस घटा. 12, 13, 14 तीनों में आपको एक कॉमन इफेक्ट दिख रहा है. 12, 13, 14 देयर इज वन कॉमन इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट. ट्रेडिंग क्रेडिट. थंब रूल, कभी भी गुड्स सेल्स के अलावा कहीं और जा रहा है ना, तो ट्रेडिंग क्रेडिट ही करना है. सेल्स हो रहा है तो रहने दो परचेज में, सेल्स के अलावा कहीं और जा रहा है तो ट्रेडिंग क्रेडिट रिमूव इट फ्रॉम परचेज, बिकॉज इट विल डिस्टॉर्ट योर ग्रॉस प्रॉफिट अदरवाइज. गॉट इट? तो रिमूव इट फ्रॉम परचेज. वन इफेक्ट इज ट्रेडिंग क्रेडिट. सेकेंड इफेक्ट सोचने का, लॉस बाय फायर है, पीएनएल डेबिट. एडवर्टाइजमेंट है, पीएनएल डेबिट. ड्रॉइंग्स है, कैपिटल डेबिट, घर पे जा रहा है. इज दिस क्लियर? आई विल गिव यू 5 minutes नाउ. अब तक मैंने कितने एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए हैं? आई थिंक 2, 2, 4 और 3, 7. 7 एडजस्टमेंट्स आई हैव डिस्कस्ड. करेक्ट? अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड परचेज, डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, और ये 3 गुड्स वाला. I want you all to go through them again. 5 minutes, quick. Go through these 7 adjustments again. Read the adjustment, read the 2 effects. खुद से आ रहा है कि नहीं चेक करो. नहीं आ रहा है तो पूछो. I'll explain again. Please go through those 7 adjustments. Come on, all of you. So I'll just go to the washman. Yeah. Unrecorded sales, unrecorded purchase, depreciation, appreciation, and 3 adjustments on goods. 12, 13, 14. Go through them. आ रहा है? अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स है वो. कैश परचेज, कैश सेल्स आपको नहीं है. डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, एंड गुड्स का 3. 12, 13, 14. સર 12th વાળામાં goods distributed as free samples, તો એ તો એક જાતનો એક્સપેન્સ છે ને? Yes. તો ટ્રેડિંગમાં ક્રેડિટ સાઇડ કઈ રીતે?
એ એક્સપેન્સ શું છે? ગુડ્સ તમે આપ્યા છે, યુ હેવ ગિવન ધ ગુડ્સ. સપોઝ યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ અ બિઝનેસ and you bought goods of 1 lakh. What entry you pass? Purchase to cash 1 lakh. Your purchase has become 1 lakh now. That is your expense, purchase, biggest expense, 1 lakh. उस परचेज में से ही वही गुड्स है, उसी में से तुमने सैंपल दिया है, तो एक्चुअली तुमने वो खर्चा कर दिया है ना. परचेज में 1 लाख के अंदर का ही 10,000 तुमने सैंपल में दिया है. ऑलरेडी खर्चा कर दिया है 1 लाख का. नहीं रिकॉर्ड करोगे ये तो चलेगा, लेकिन क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि ये गुड्स हमने बेचा नहीं, 1 लाख का गुड सेल नहीं हुआ. 1 लाख में से 10,000 का एडवर्टाइजमेंट में दिया. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपली एक खर्चे को कम कर रहे हैं, दूसरा खर्चा बढ़ा रहे हैं. परचेज को कम कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा रहे हैं. परचेज को 90,000 कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट को 10,000 से बढ़ा रहे हैं. क्योंकि वो गुड्स बेचा नहीं है ना, तो मिसमैच हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिस्टॉर्ट हो जाएगा. कभी सैंपल दोगे, कभी नहीं दोगे. अगर मैं कुछ करूं ही ना, परचेज में ही रहने दूं 10,000 को, तो क्या होगा? पूरे के पूरे गुड्स बिके नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा. मेरे को लगा बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया तो. बट ऐसा तो है नहीं, मैंने 10,000 तो सैंपल में दिए थे ऐसे ही. तो इसलिए मैं उसको परचेज में से रिमूव करता हूँ. परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस कम करता हूँ और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ा देता हूँ. बोलो सर, लाइव स्टॉक पे भी डेप्रिसिएशन लगता है? लाइव स्टॉक पे जनरली डेप्रीसिएशन कम लगता है. वो अपनी लाइफ खत्म हो जाती है ना, तो पूरा राइट ऑफ हो जाता है. ओवर द इयर्स थोड़े टाइम बाद उसका अप्रिसिएशन होता है, एडिशनल गेन्स होता है. इफ दे गिव बेबीज, न्यू बॉर्न, ओके, एलिफेंट्स होते हैं, काउज होते हैं. डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट लाइव स्टॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं है. लाइव स्टॉक को हम लोग सीधा राइट ऑफ कर देते हैं. जब वो डेथ वेथ हो जाती है तो लॉस बाय एसेट करके पूरा राइट ऑफ कर देते हैं. सर एक डाउट है, मतलब अगर हम लोग सेल्स करते क्रेडिट पे और फिर हमारा डेटर अगर बिल इश्यू कर देता है, तो हम लोग डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल में ऐड करके सेल्स में भी ऐड कर सकते हैं कि? कर सकते हो, बट एडवाइजेबल नहीं है. जनरली डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस इनका अलग होता है, आपके सम्स में सेम होता है, जनरली अलग होता है. मतलब एक दिन पे सेल होता है, 2-3 दिन 4 दिन बाद एक्सेप्ट होता है, तो सेपरेट एंट्रीज करना एडवाइजेबल है. डेटर का इफेक्ट, डेटर का वैल्यू तो वही रहेगा ना, कि एक बार ऐड कर रहे हैं, एक बार लेस कर रहे हैं. हाँ, वैल्यू वही रहेगा, बट करना पड़ेगा ना दोनों. अच्छा, प्रोसीजर के हिसाब से जाना है ना, डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है उसके हिसाब से जाना. देखा 7 ट्रांजैक्शंस क्लियर? हाँ बोलो. सर गुड्स लॉस्ट बाय फायर इंश्योर्ड, अब एक बार समझा सकते. इंश्योर्ड मैंने करवाया नहीं अभी तक, अनइंश्योर्ड ही करवाया बॉस. 12, 13, 14 ही तो बोला, अनइंश्योर्ड वाला. बराबर है. अब नेक्स्ट वन, कम टू एडजस्टमेंट नंबर 10 and 11. बीआर डिसऑनर्ड, बीपी डिसऑनर्ड. मुझे बताओ, रिटेन्ड बिल डिसऑनर, रिटेन्ड बीआर डिसऑनर की एंट्री क्या थी? डेटर टू बीआर, एक्सेप्टर टू बीआर. एक्सेप्टर म्हणजे डेटर. तो डेटर टू बीआर को आपको घुसाना है फाइनल अकाउंट में. आप भूल गए, ऐसे घुसाओ. Debtor will be increase. यस, डेटर डेबिट हुआ, एसेट बढ़ा, तो ऐड टू डेटर, डेटर से पैसा लेने का बढ़ेगा. और Subtract from purchase. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेज कहाँ से आया? बीआर है. Sorry. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बीआर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल. याद है, बताया था, जब डिसऑनर होता है तभी बीआर घटता है, डेटर बढ़ता है. जब एक्सेप्ट होता है तभी बीआर बढ़ता है, डेटर घटता है एज एन एसेट. क्लियर? एक्सेप्टर टू बीआर, इधर डेटर से पैसा लेने का बढ़ गया और बीआर घट गया, तो लेस फ्रॉम बीआर, ऐड टू डेटर. गॉट इट? व्हाट अबाउट बीपी डिसऑनर? व्हाट वाज द एंट्री फॉर बीपी डिसऑनर? Bills payable से subtract. Bills payable to drawer. बिल्स पेबल टू ड्रॉवर. हु इज अ ड्रॉवर? Creditor. क्रेडिटर. अभी इसको घुसाना है फाइनल अकाउंट में. कैसे घुसाओगे? Add to creditor less from bills payable. समझ रहा है? याद है बीपी डिसऑनर होता था तो क्या होता था? बीपी की लायबिलिटी घटती थी और क्रेडिटर की बढ़ती थी. तो बीपी घटा ना, तो माइनस फ्रॉम बिल्स पेएबल, और क्रेडिटर को पैसा देने का बढ़ गया तो ऐड टू क्रेडिटर.
Are these two adjustments clear? BR dishonored, BP dishonored, all of you got that? देखो एडजस्टमेंट्स और फॉर्मेट ही होता है फाइनल अकाउंट में. आपको जैसे मैंने BR BP में आपको जर्नल एंट्रीज का प्रोफॉर्मा बोला था, अगर आपको जर्नल एंट्रीज आते हैं तो केको के चैप्टर मस्का, वैसे ही फाइनल अकाउंट्स में आपको फॉर्मेट क्लियर है और एडजस्टमेंट्स क्लियर है ना, आप राजा हो. 80% आ गया आपको चैप्टर, 80% इधर ही हो गया, फाइनल अकाउंट खत्म. 20% बचता है, वो टैलिंग पार्ट है और हिडन एडजस्टमेंट छोटा छोटा, यही मेन है. समझ रहे हो? BR डिसऑनर, BP डिसऑनर, ये दो समझ में आया. एंट्री बेस्ड ही है. क्या किया? BR डिसऑनर बोलो, डेटर टू BR, डेटर बढ़ा BR घटा, एड टू डेटर लेस फ्रॉम BR. BP डिसऑनर में क्या हुआ? BP घटा, क्रेडिटर बढ़ा, लेस फ्रॉम BP एड टू क्रेडिटर. BP has a liability decreased, creditor has a liability increased. Is this clear? All of you? Next one. उधर देख लो जरा. दोनों लायबिलिटीज में से माइनस और प्लस होगा ना? हाँ, टोटल लायबिलिटी सेम ही रहेगा. लायबिलिटी में से ही माइनस प्लस, वो एसेट में से ही माइनस प्लस. एक एसेट बढ़ा, एक एसेट घटा. देखो उधर पढ़ो क्या दिया है. BR dishonored पढ़ो. They are the bills which are accepted by our debtors and now dishonored. इफेक्ट क्या होगा? एसेट्स में लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड एसेट्स में ही एड टू डेटर्स. BP dishonored, these are the bills accepted by us, drawn by our creditors, now dishonored. Liabilities में less from bills payable, liabilities में ही add to creditors. Got it? Next one, come to adjustment number 4, 5, 6 and 7. Outstanding expenses. Outstanding expenses. What are outstanding expenses? पहले meaning क्या होता है outstanding expenses का? Expenses incurred but not paid. Incurred but not paid. हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं स्मिथ शाह? डू वी फॉलो कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? अक्रूवल. व्हाट डज अक्रूवल सिस्टम स्टेट? एक्सपेंस और इनकम कैसे रिकॉर्ड करना है? कैश बेसिस की अक्रूवल बेसिस? अक्रूवल का मतलब क्या है? इनकर्ड बेसिस. काम हो गया ना, मतलब एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है. एग्जाम्पल, आपकी सैलरी है, आपके एम्प्लॉय की सैलरी है 12,000 रुपए पर ईयर. महीने की 1000 है, साल की 12,000 है. लेकिन आपने उसको पे किया 10,000. यू हैव पेड ओनली 10,000. सो इन योर फाइनल अकाउंट्स विल यू शो योर एक्सपेंस एज 10,000 और 12,000? 12,000. 10 को 12 बनाओगे कैसे? वो 2,000 क्या होगा? आउटस्टैंडिंग. अभी हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री, जो पे किया उसका एंट्री क्या होगा? सैलरी टू कैश. जो आउटस्टैंडिंग है उसका एंट्री क्या होता है? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. हमने किया ना अभी इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, एक्सपेंस पेएबल. एक ही बंदे को देना है तो टू ड्रॉवर. बहुत सारे लोगों को देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. यू कैन यूज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. दैट्स योर एंट्री 2000. अभी आपको ये घुसाना है इन द फाइनल अकाउंट. सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको डालना है फाइनल अकाउंट. कैसे घुसाओ? Add to salary. Salary will increase by 2,000, right? 10 का कर दोगे 12. Add to salary. Liability में 2,000 is outstanding salary. Liability में 2,000 is outstanding salary. बराबर है? ये एक इफेक्ट. Add to salary, P&L डेबिट में जाता है सैलरी, तो उसमें ऐड कर दो और लायबिलिटी. 11th में भी सब 11th में किया हुआ था, खाली BR डिसऑनर BP डिसऑनर को छोड़ के. Everything is repetitive. Hope you are getting that. Salary outstanding, add to salary and liability. Add to salary and liability. What about wages outstanding? Wages outstanding हुए तो? Add to wages and liability. Add to wages and liability. Wages कहाँ दिखते हैं? Trading debit. Trading debit. Salary कहाँ दिखती है? P&L debit. What if it is commission paid outstanding? P&L debit. तो क्या करना है? Add to. Can you repeat? Commission paid is outstanding. Commission is outstanding. तो commission में add होगा Commission में add liability. होगा and liability बाकी है. बराबर है?
जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड कर दो, देना बाकी है तो लायबिलिटी, सिंपल। क्यों करना है? क्योंकि अक्रूवल, अक्रूवल क्या बोलता है? एक्सपेंस इनकर हो गया तो रिकॉर्ड करो, इनकर हो गया तो रिकॉर्ड करो, पैसा आगे पीछे दो चलेगा, वांदा नहीं, एक्सपेंस दिखना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अगेन कंसिस्टेंसी, मेरी सैलरी 12 महीने की 12,000 है ना, तो मैं 12,000 ही दिखाऊंगा, ना कम ना ज्यादा। 10,000 पे किए तो उसको भी 12 बनाऊंगा, ज्यादा पे किए तो उसको प्रीपेड दिखा के कम कर दो। 12 12 12 ही दिखाऊंगा क्योंकि काम 12,000 का हुआ है ना, तो वही आपका प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहेगा, कंपैरिजन पॉसिबल रहेगा हर साल। एक साल आप 6,000 की सैलरी दिखाओगे, एक साल आप 8,000 की दिखाओगे, एक साल 20,000 की दिखाओगे, तो प्रॉफिट्स विल आल्सो फ्लक्चुएट। आर यू गेटिंग दिस? प्रॉफिट फ्लक्चुएट होते रहे, काम तो उतना ही हो रहा है, खाली फोकट का एक्सपेंस अगर पेड बेसिस पे दिखाओगे, कैश बेसिस पे दिखाओगे, तो प्रॉफिट जंप मारते रहेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा। इसीलिए हम लोग कैश बेसिस पे एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड नहीं करते। अक्रूवल मतलब इनकर्ड, इनकर्ड मतलब जैसे काम हुआ वैसे एक्सपेंस डेबिट, पैसा दिया तो टू कैश, देना बाकी है तो लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग, लेकिन एक्सपेंस को तो डेबिट कर ही देने का ताबड़तोड़, समझा? तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या करना है आपको? ऐड करना है कि लेस? बोलो। ऐड। ऐड टू सैलरी, सैलरी विल इंक्रीज, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है आपका? एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। लायबिलिटी। तो ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटी, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। इसका ऑपोजिट होता है प्रीपेड एक्सपेंस। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? Expenses paid in advance. Before एक्सपेंसेस that, पेड इन एडवांस। देखो सैलरी है मेरी 12,000 साल की, मैंने पे कर दी है 15,000, शुड आई शो 15,000 एज माय एक्सपेंस? यस, नो, प्रीपेड में आएगा ना, बाकी का 3,000 हाँ, एसेट्स है। but that is prepaid. Will I show salary as 15,000 in my PNL? नो नो नो, सैलरी नॉट। तो उसमें से मैं क्या करूंगा? 3,000 क्या कर दूंगा? प्रीपेड है ना, नेक्स्ट ईयर का है, तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो प्रीपेड सैलरी का एक इफेक्ट क्या होता है? लेस फ्रॉम सैलरी, एंड सेकंड इफेक्ट क्या है? एसेट, क्योंकि एडवांस में दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी है, ये मेरे को नेक्स्ट ईयर काम आएगा। ये जो 3,000 है ये नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? करंट एसेट। ये साल का एसेट है ना 3,000, नेक्स्ट ईयर में यही 3,000 क्या बन जाएगा? एक्सपेंस, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बन जाएगा। ये साल का एक्सपेंस नहीं है ना, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, पैसा ये साल दे दिया, तो मैंने प्रीपेड सैलरी करके माइनस कर दिया। Got it? करना था मेरे को सैलरी टू कैश 12, मैंने कर दिया सैलरी टू कैश 15, तो अभी मैं मार रहा हूं एडजस्टमेंट एंट्री, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, याद है बताया था? प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, क्या कर रहे हो आप? प्रीपेड सैलरी एसेट बढ़ा रहे हो, एक्सपेंस घटा रहे हो, 3,000 रुपया एक्सपेंस में से कम कर रहे हो और एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो। ये प्रीपेड सैलरी नेक्स्ट ईयर काम आएगी, दिस विल बिकम एन एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। 3,000 इज एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर। इस साल हटाओ, कम करो। So outstanding expense and prepaid expense, I want you all to have a look at it. Adjustment number 4 and 5. All of you check adjustment number 4 and 5. What are outstanding expense? They are the expenses which are already incurred but not paid. Can you all see that? Expenses incurred but not paid. Expenses यही साल का है, पैसा नहीं दिया है, चलेगा। Expense में क्या करो? Add कर दो। One effect is add to respective expense. Can you see that? Trading या P&L debit side add to respective expense. Second effect liability, क्योंकि देना बाकी है. You can relate it to unrecorded purchase. आपने किया अभी अभी. What is the entry for unrecorded purchase? Tell me. Purchase to creditor. Creditor. Purchase क्या है? Expense. Creditor क्या है? Outstanding expense. आपने क्या किया? ऐड टू परचेज और क्रेडिटर में ऐड कर दिया ना लायबिलिटी में, तो यही मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग में किया, ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटी, देना बाकी है, सेम कंसेप्ट। अनरिकॉर्डेड परचेज ही है वो, परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज इज आउटस्टैंडिंग परचेज, परचेज इज आल्सो एन एक्सपेंस, देना बाकी है। अंडरस्टूड?
यही किया मैंने। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का ऑपोजिट, अगर ज्यादा पे कर दिया है तो भी नहीं दिखाना है, कम पे किया है तो भी नहीं दिखाना है, जितना इनकर हुआ है उतना ही दिखाना है। तो ज्यादा पे कर दिया तो क्या करोगे, प्लस की माइनस? माइनस। माइनस, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? Add to asset. एसेट। क्यों एसेट? एडवांस में दे दिया ना, बेनिफिट मिलना बाकी है। आप जियो का रिचार्ज प्रीपेड करवाते हो, 3 महीने का प्रीपेड करवा देते हो, 3 महीना वापरते हो ना बेनिफिट, वैसे ये सैलरी प्रीपेड है, आपका एसेट है। 3 महीने तक अभी नेक्स्ट सैलरी पे करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ईयर में 3 महीने तक यही काम आएगा, यही आपका एक्सपेंस होगा, प्रीपेड सैलरी जो ये साल आपने एडवांस में दे दिया है, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बनेगा 3 महीने का वो। इज दिस क्लियर? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करना है, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करना है कि लेस? ऐड ऐड करना है। एंड सेकंड इफेक्ट क्या होगा? लायबिलिटी देना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या करना है, ऐड की लेस? माइनस ज्यादा पे कर दिया हटाओ, ये साल का एक्सपेंस नहीं है, ज्यादा नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया हटाओ। एंड सेकंड इफेक्ट क्या होगा? एसेट। उसी का ऑपोजिट इनकम के लिए हो, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ना, वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम हो सकती है, सेम फंडा। आउटस्टैंडिंग इनकम को कहा जाता है इनकम रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग इनकम को कहा जाता है इनकम रिसीवेबल। सेम कंसेप्ट है, खाली इनकम को अप्लाई होता है। तो आपको रेंट मिलना था एक जगह का, आपको रेंट मिलना था 50,000, आपने जगह भाड़े पे दी है, 50,000 होना चाहिए, लेकिन आपको मिला है खाली 40,000। जगह पूरा हो गया, 12 महीना हो गया, 50,000 मिलना चाहिए, मिला है खाली 40, तो 10,000 क्या बोलोगे? रेंट रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 विल बी रेंट रिसीवेबल। तो अभी हमने बताया अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है, इनकर्ड और अर्नड बेसिस पे एक्सपेंस और इनकम दिखाना है। तो विल यू शो योर रेंट इनकम एज 40,000 और 50,000? 50,000। हाउ विल यू मेक 40 का 50? Add to income. Add rent receivable, rent को ऐड कर दो, add to rent. Income. And an asset will show rent receivable. And rent receivable is what? Income receivable is what? Income Liability or asset? Asset. Asset. Is this clear? So add to income and asset, add to income. वो कैसा? Add to expense and liability था, क्योंकि देना बाकी था। ये add to income and asset है, क्योंकि मिलना बाकी है। दोनों ऐड ही हो रहा है, दोनों आउटस्टैंडिंग ही है। आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी है या देना बाकी है। Expense to belongs to this year, so you have to increase it, or income belongs to this year, that's why you have to increase it. खाली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि चुकाना बाकी है। इनकम रिसीवेबल इज एसेट, क्योंकि मिलना। यू कैन रिलेट इट टू अनरिकॉर्डेड सेल्स। व्हाट इज द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स? अभी एडजस्टमेंट। व्हाट इज द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स? डेटर टू सेल, ऐड टू सेल, ऐड टू डेटर। याद है आपको? ऐड टू सेल क्यों किया? सेल्स इनकम बढ़ा ना। ऐड टू डेटर क्यों किया? पैसा लेने का बढ़ा ना। वही मैंने रेंट में किया, ऐड टू रेंट, रेंट लेने का बढ़ा, इनकम मिलनी बाकी है, इनकम बढ़ गई ना रेंट, तो ऐड टू रेंट। एंड रिसीवेबल है तो एसेट, मिलना बाकी है। जैसा डेटर है वैसा रेंट रिसीवेबल है, जैसा रेंट है वैसा सेल्स है, सेम थिंग। डिड यू अंडरस्टैंड? सर मतलब इनकम रिसीवेबल इज एन एसेट। इनकम रिसीवेबल इज एन एसेट, इट इज अ डेटर, पैसा लेना बाकी है। तो इनकम रिसीवेबल नेक्स्ट ईयर के लिए ना, मतलब नेक्स्ट ईयर हमें इनकम नहीं, इनकम रिसीवेबल मतलब ये साल का इनकम में पैसा मिलना बाकी। हाँ, पैसा नेक्स्ट ईयर मिलेगा। पैसा मिलने दो ना, नेक्स्ट ईयर क्या फर्क पड़ता है। कमा लिए ना, अर्नड इनकम। कंसेप्ट क्या बोलता है? अर्नड इनकम। अक्रूवल कंसेप्ट क्या? अर्न, कमा लिए तो ये साल का ही पीएनएल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो सर हम लोग ने जब बीआर में इंटरेस्ट रिसीवेबल लगाया था, तो तभी इट वाज ऑन द क्रेडिट साइड, बिकॉज हमें यही साल मिलने वाला है। यही साल मिलने वाला है नहीं, फ्यूचर में मिलेगा। अभी जनरेट हो गई है इनकम, पैसा मिलना बाकी। तो उधर हम लोग ने उसको इनकम के जैसे ट्रीट किया और इधर एसेट। नहीं, सेम ही है यार। उधर एंट्री क्या मारी थी हमने? एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट, तो एक्सेप्टर था ना, वही रिसीवेबल था, डेटर ही रिसीवेबल था।
एक्सेप्टर ही रिसीवेबल था. इंटरेस्ट रिसीवेबल कब यूज करना है? जब 2-3 जगह से मिलना बाकी है, और एक जगह से मिलना बाकी है तभी पार्टी का नाम यूज कर सकते हो. अभी तो बोला मैंने, डेटर टू सेल ही है ये. इंटरेस्ट रिसीवेबल एंट्री क्या होती है? जैसे डेटर टू सेल होता है, वैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल या इनकम रिसीवेबल टू इनकम इन जनरल. डेटर टू सेल, दैट इज इनकम रिसीवेबल टू इनकम. डेटर के जगह इनकम रिसीवेबल, सेल्स के जगह इनकम. समझा? इनकम बढ़ेगी, उसमें भी इनकम बढ़ी थी, इंटरेस्ट बढ़ा ही था. इंटरेस्ट रिसीवेबल इज एसेट, मिलना बाकी. ऑपोजिट टू दिस बता सकते हो क्या होता है इंटरेस्ट रिसीवेबल का ऑपोजिट? जैसे उधर प्रीपेड एक्सपेंस था, इधर क्या हो सकता है? इंटरेस्ट पे Received in advance. जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है ना, वैसे प्री रिसीव्ड इनकम होती है. प्री रिसीव्ड इनकम, उसको क्या कहा जाता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब बड़ा ही सिंपल है. आपका रेंट आपको मिलना चाहिए 50,000 साल का, और मिल गया है 60,000. कैन यू शो योर इनकम टू बी 60,000? नो. तो 60 को 50 कैसे बनाओगे? मतलब रेंट है तो उसमें से रेंट रिसीव्ड इन एडवांस सब्ट्रैक्ट करेंगे. का अभी आ गया है, क्या वो ये साल की इनकम है? कौन सी? नहीं, नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर. रिसीव्ड इन एडवांस. इस साल क्या करोगे? रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करोगे? प्लस लेस फ्रॉम इनकम लायबिलिटी. फ्रॉम रेंट माइनस फ्रॉम इनकम. 10,000 माइनस कर दोगे. एंड व्हाट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? लायबिलिटी. एडेड टू लायबिलिटी रिसीव्ड इन एडवांस. आप सबने मेरे को 12th स्टैंडर्ड की फीस जनवरी में दे दी थी. ईयर चालू हो रहा था अप्रैल टू मार्च. तो क्या वो फीस मेरी इनकम थी फॉर द ईयर 2021 की इनकम थी कि 21-22 की इनकम है? वो 21-22 की इनकम है. तो लास्ट ईयर मेरे लिए वो क्या थी? फीस रिसीव्ड इन एडवांस. इट वाज अ लायबिलिटी, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना बाकी है, ऑब्लिगेशन देना बाकी है. अब ये साल वो जो आपने मुझे जनवरी के पैसे दिए थे, वो ये साल की क्या हो जाएगी? इनकम. जाली है. समझा? तो कंसेप्ट यही है कि जिस साल आप कमाते हो वही साल में इनकम में क्रेडिट करोगे, रिकॉर्ड करोगे. ना नेक्स्ट ईयर का ना प्रीवियस ईयर का. अगला पिछला वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के जैसा एडजस्ट करना है, या इनकम रिसीवेबल रिसीव्ड इन एडवांस. गॉट इट? तो 4 कंसेप्ट, 4 थिंग्स. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मेरे को बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस साल का है? करंट ईयर का कि नेक्स्ट ईयर का? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर. करंट ईयर का एक्सपेंस. तो आप क्या करते हो? उसको ऐड. ऐड करते हो. पैसा देना बाकी है, पैसा भले ही नेक्स्ट ईयर दे दो, काम ये साल हुआ है. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 2 इफेक्ट क्या होगा? ऐड टू एक्सपेंस एंड व्हाट? लायबिलिटी. Liability. प्रीपेड एक्सपेंस का क्या होगा? ज्यादा पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया. लेस फ्रॉम Less एक्सपेंस. Less from expense and add to assets. प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा खर्चा है? ये साल का खर्चा है कि नेक्स्ट ईयर का खर्चा है? नेक्स्ट ईयर का. नेक्स्ट ईयर का खर्चा है. पैसा ये साल दे दिया. पैसे से मैटर नहीं करता है, काम हुआ कि नहीं इंपॉर्टेंट है, उतना ही एक्सपेंस दिखना चाहिए. तो ज्यादा पे करने से एक्सपेंस बढ़ नहीं जाता है आपका. हटाओ, ये साल से हटाओ. प्रीपेड क्या करो? माइनस करो, और एसेट में दिखाओ ये प्रीपेड एक्सपेंस कौन से साल का एक्सपेंस है? एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर. इट विल बिकम नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस. तीसरा वाला इनकम रिसीवेबल, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम मिलनी बाकी है. कौन से साल की इनकम है? ये साल. ये साल की इनकम. ये साल की इनकम है. तो क्या करोगे? ये साल की इनकम Add to Added income. to Assets. income and Assets. एसेट्स. ऐड टू इनकम एंड एसेट. यही साल को बिलोंग करती है तो ऐड करो, और मिलना बाकी है तो एसेट. व्हाट अबाउट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? ज्यादा मिल गई है, subtract from Liability. लेस फ्रॉम इनकम. ये साल को बिलोंग नहीं करती है, हटाओ. एंड सेकंड इफेक्ट, Liability. liability. एडवांस में आ गई है, बेनिफिट देना बाकी है. इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एडजस्टमेंट एंट्री इट इज इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ये बताया था, याद है लास्ट ईयर भी? इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम में से माइनस, तो इनकम डेबिट हुआ एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. Cash to income distribution. That is the actual entry when you receive income for next year. वो recorded हो गया. समझो आपको
रेंट मिलना चाहिए 50 और आपको मिला है 60, तो आपको एक्चुअली आइडियली जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना जर्नल में, तो आपको ऐसे रिकॉर्ड करना है, कैश टू रेंट 50 एंड कैश टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 10,000. दिस इज द एक्चुअल जर्नल एंट्री. ये होना चाहिए. अगर ये हो गया तो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा. तो वन इफेक्ट, रेंट रिसीव्ड एडवांस सीधा लायबिलिटी, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है. बराबर है. बट व्हाट डू बिजनेसेस डू नॉर्मली, वो लोग ये नहीं करते, वो लोग करेंगे सीधा कैश टू रेंट 60,000, कैश टू रेंट मार देंगे 60. तो आपने क्या किया, रेंट को कितने से क्रेडिट देना था, एक्चुअली 50 से देना था ना, 50 से ही रेंट क्रेडिट करना था, वही आपकी इनकम थी. आपने क्या कर दी, 60 से क्रेडिट कर दी. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेक्टिफाई करते हैं. ऑन फाइनल अकाउंट डे वी रेक्टिफाइड, दैट इज योर एडजस्टमेंट एंट्री. व्हाट इज द एंट्री, रेंट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. आप रेंट को डेबिट करो, कम करो, और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस में डाल दो 10,000 एज योर लाइफ. सो एक्चुअल जर्नल एंट्री इज कैश टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. बट ये एडजस्टमेंट कर रहे हो आप, ये आपको बताया था ना 90% जर्नल एंट्रीज आर एडजस्टमेंट. जो 10% नहीं है वो ये है, ये 10% एंट्री. एक्चुअल जर्नल एंट्री इज नॉट एडजस्टमेंट एंट्री. एडजस्टमेंट एंट्री इज इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है. So 4 adjustments, go through them again quickly. Adjustment number 4, 5, 6 and 7. Videos on, off videos will be out. 4, 5, 6, 7. ध्यान से देखो. Outstanding expenses. What are the two effects? Outstanding expenses, they are the expenses which are already incurred but not paid. Trading P&L debit side, add to respective expense and liability. Add क्यों किया समझा? Expense belongs to which year? Current year or next year? Next. Outstanding. Current year. Current year. Expense belongs to this year, पैसा देना बाकी है. Prepaid expense. What is prepaid expense? They are the expenses which are incurred but not incurred but paid in advance. Incur हुआ नहीं है, paid in advance. Next year का अभी पे कर दिया. Prepaid मतलब ज्यादा पे कर दिया. तो क्या करना है, प्लस की माइनस? Less. दिख रहा है वहां पे, ट्रेडिंग या P&L डेबिट साइड, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड व्हाट, एसेट. एडवांस में पैसा दे दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी है. इनकम रिसीवेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसा, वो देना बाकी है, ये मिलनी बाकी है. तो इट इज द इनकम विच इज ऑलरेडी अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड. इस साल को बिलोंग करती है. तो क्या करोगे, इनकम रिसीवेबल क्या करोगे, प्लस की माइनस? प्लस. ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम. P&L अकाउंट क्रेडिट साइड उधर लिख दो. P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम. ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम. P&L account credit side, add to respective income. Make that correction. P&L account credit side, add to respective income. Second effect, assets, क्योंकि पैसा मिलना बाकी है. And what about income received in advance? What about income received in advance? It is the income which is not earned but received in advance. ज्यादा आ गया, तो क्या करना है, प्लस की माइनस? Subtract. And asset की liability. लायबिलिटी एडवांस में आ गया, बेनिफिट देना. चारों क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, रिसीवेबल, रिसीव्ड इन एडवांस. अभी इसी का कजिन ब्रदर एक और एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक. द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक. आपको इफेक्ट याद है क्लोजिंग स्टॉक की? लास्ट ईयर करते थे हम लोग. क्या होता है? Trading credit and asset. What do you mean by closing stock? The stock of goods which we have purchased but we are yet, it is not sold completely. मतलब पूरा बच गया. बच गया. आपने 1 लाख का गुड्स खरीदा है, उसमें से 10,000 का बच गया, उस 10,000 को क्या बोलते हो? Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक. अब सुनना ध्यान से. आपको सैलरी पे करनी थी 90,000, आपने पे कर दी 1 लाख, तो 10,000 क्या होती है? प्रीपेड सैलरी होती है. कब काम आएगी? नेक्स्ट ईयर. वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है. वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक क्या है? प्रीपेड परचेज है. क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट प्रीपेड परचेज.
आपने बेचा है खाली 90 का ना गुड्स, तो खरीदना था 90 का, लेकिन आप तो 1 लाख का खरीद लिए, इसलिए 10,000 का बच गया। कब काम आएगा वो 10,000 का गुड्स? तो बचा हुआ गुड्स है ये साल का कब काम आएगा? फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट ईयर। सो क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? प्रीपेड परचेज ही होता है, प्रीपेड परचेज ही होता है और कुछ नहीं। What are the two effects of prepaid expense? Just now we saw. What are the two effects of prepaid expense? Less from income, Less from expense expense and assets. assets. Closing stock का भी वही है, खाली अगेन लेस फ्रॉम परचेज नहीं करना है। कहाँ दिखाना है? Trading credit. वो गुड्स वाले बताए थे ना, लेस फ्रॉम परचेज की जगह ट्रेडिंग क्रेडिट, ये भी लेस फ्रॉम परचेज की जगह ट्रेडिंग क्रेडिट। तो ट्रेडिंग क्रेडिट एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट। मीनिंग समझा आपको? मीनिंग क्या है? व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? प्रीपेड परचेज। तो लेस फ्रॉम परचेज की जगह ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। ये कब काम आएगा आपको? तो आप फॉर्मेट में मैंने आपको छोड़ा था, याद है? स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक छोड़ा था। ट्रेडिंग अकाउंट का वेरी फर्स्ट आइटम क्या दिख रहा है? फॉर्मेट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का वेरी फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? The stock which closed down this year, जो ये साल का बचा हुआ स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ये साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। अभी बोला ना हमने, क्या डिस्कस किया? प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर विल बी द एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। वही किया है मैंने। वो ओपनिंग स्टॉक क्या है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का एसेट बिकम्स ये साल का फर्स्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, एंड ये साल का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम नेक्स्ट ईयर का एसेट, ओपनिंग स्टॉक। ये साल का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, दैट इज एन एक्सपेंस। ट्रेडिंग डेबिट में दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, कैन यू सी दैट? ओपनिंग स्टॉक इज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट्स व्हाई इट इज शोन ऑन डेबिट साइड, एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। गॉट इट? ये पहली और आखिरी ऐसी चीज है जो 12th स्टैंडर्ड में जो लास्ट ईयर से रिलेट कर रही है आप। लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? समझो 50,000 था, तो ये साल का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 50,000। तो लास्ट ईयर का प्रीपेड था, पैसा दे दिया था, बेनिफिट मिलना बाकी है, तो ये साल का एक्सपेंस बन के आएगा, वही ओपनिंग स्टॉक, इसीलिए डेबिट में दिख रहा है। हमेशा याद रखना, प्रीवियस ईयर का एसेट विल बिकम नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस। प्रीवियस ईयर का जो भी एसेट था वो नेक्स्ट ईयर का आपका एक्सपेंस बन जाएगा स्टॉक के केस में। इज दिस क्लियर? सैलरी प्रीपेड भी सेम ही है। लास्ट ईयर की प्रीपेड सैलरी ये साल की क्या बन जाएगी? ये साल की सैलरी में ऐड हो जाएगी, ये साल का सैलरी में एक्सपेंस बन के ऐड हो जाएगा। गॉट इट? तो एसेट का मतलब क्या है? बेनिफिट मिलना बाकी है, तो कभी मिलेगा? नेक्स्ट ईयर मिलेगा, नेक्स्ट ईयर वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप फर्नीचर खरीद के लाए हो, 1 लाख का फर्नीचर है, 10 साल की लाइफ है, पहला साल से डेप्रीशिएट हुआ तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में दिखाते हो ना। एसेट में कितना दिखाओगे? 90,000। फिर नेक्स्ट ईयर वापस एक्सपेंस बनेगा ना वो 10,000 का, बचा हुआ एसेट में जाएगा 80,000। वापस नेक्स्ट ईयर 10,000 एक्सपेंस जाएगा, बचा हुआ 70 एसेट, वापस 10,000 एक्सपेंस, बचा हुआ 60 एसेट। तो जिसका बेनिफिट मिलना बाकी है वो एसेट है, बट अल्टीमेटली एवरी एसेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन एक्सपेंस। आर यू गेटिंग दैट? So all your assets will be gradually converted into your expenses sooner or later. That's how the cycle works. Okay. So closing stock is what? Closing stock is what? Prepaid purchases. Prepaid purchases. What are the two effects of prepaid expense? Trading credit and asset. Trading credit and assets. Why trading credit and asset? It is less from purchase and asset. Less from purchase and asset. Indirectly it is less from purchase and asset. Got that? और एक चीज हमने डिस्कस की थी, कौन से वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस whichever is lowest value. Why? Due to which concept? Conservatism. Very good. क्या होगा इससे? वीर, can you explain? So because of conservatism tells us to like prepare for all the losses. So if we take the lower value, it'll help us because lower value, the stock will be less. We are considering the lower value. Stock will be less, then what will happen? Profit should be more.
or less. Profits will be less and we'll have SR space for losses. Absolutely. So that the income will be. प्रॉफिट शुड बी लेसर ना. क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिख रहा है आपको? ट्रेडिंग क्रेडिट में दिख रहा है. ट्रेडिंग क्रेडिट में अगर आप अमाउंट कम कर दो तो टोटल कम हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा. तो कम वैल्यू दिखाओगे तो एडवांस में आप कम प्राइस में दिखा रहे हो स्टॉक कंजर्वेटिज्म के हिसाब से. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका है 10,000 रुपए का. ओके, मार्केट में भाव हो गया 8,000, तो आप कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे? 10 की 8, 8,000 रुपए. क्यों 8,000 रुपए? अगर आपने 10 में किया और नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा, बराबर, नेक्स्ट ईयर बेचोगे, तब नेक्स्ट ईयर 8 में ही बिकने वाला है, तो लॉस होगा ना आपको. आप क्या कर रहे हो? अभी 8,000 पे रिकॉर्ड कर रहे हो. क्लोजिंग स्टॉक को अभी 8,000 पे रिकॉर्ड कर. अभी 8,000 में करने से क्या हुआ? प्रॉफिट यही साल कम हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो 2,000 का लॉस एडजस्ट हो गया. अभी ये 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 8,000, और 8 का स्टॉक कितने में बिकेगा? 8,000 में. तो नो प्रॉफिट नो लॉस. तो जो लॉस नेक्स्ट ईयर होने वाला था वही लॉस ये साल दिखा दिया. दैट इज व्हाट इज कंजर्वेटिज्म. लेकिन आपका स्टॉक आपने खरीदा है 10 का और मार्केट में भाव चल रहा है 15,000, तो कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 10 पे कि 15 पे? 10 पर ही रिकॉर्ड करो. क्यों? क्योंकि फ्यूचर में बेचोगे तो 5 का प्रॉफिट होने ही वाला है. प्रॉफिट कभी एडवांस में रिकॉर्ड नहीं करना. लॉसेस हमेशा एडवांस में दिखा देने का. दैट इज व्हाट इज कंजर्वेटिज्म. ओके, तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा वैल्यू लेना है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस, whichever is Yes. and what are the two effects of closing stock? What are the two effects of closing stock? Trading credit and add to asset. Trading credit and asset. Trading credit and asset. Okay, prepaid purchase है. So I'll give you again last 5 minutes quickly revise. जो अभी तक हमने एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए हैं सब रिवाइज कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक 1 to 14 पूरा रिवाइज करो. 5 minutes quickly. सर वो आपने ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम बोला था, वो कौन से एडजस्टमेंट में लिखा था? इनकम रिसीवेबल. Income receivable, add to respective income. Trading account, sorry, P&L account credit side, add to respective income and assets. All videos on, all videos on, videos. Ansh Mehta, Vidushi, Maya. See, unnecessarily you'll get kicked out. Revise, come on. All 14 adjustments, go through them. All 14 adjustments. Priyansh Dedia, getting it? थोड़ा स्टार्ट तो हो गया है ना अभी, वहां पे भी फाइनल अकाउंट्स एंड ऑल, तो बेसिक्स तो कवर हुआ रहेगा ना. आई थिंक फॉर्मेट एंड एडजस्टमेंट्स एंड ऑल. करो, go through करो all the adjustments.
An important announcement. Friday. Done. 1 minute. Friday is your test of bills of exchange, 40 marks. I'll send the paper pattern today. 3 questions of journal. BR का एक क्वेश्चन होगा, BP का एक होगा, दोनों विथ लेजर, एक मिक्स्ड एंट्रीज का होगा 10 10 10, एक प्रोफॉर्मा 5 और एक ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स. 40 marks, 1.5 hour. On Friday it's Eid, so holiday होगा ना कॉलेज में? हाँ सर. Right? So college it is holiday. So I'm keeping from 1 to 2. No, sorry, 2 to 3:30. 2 to 3:30. Sir, we have class. Which class? Pooja ma'am. Pooja ma'am for economics. What time? 2:30 to 4. 2:30 to 4. So 1 to 2:30. राजीव सर रहते हैं ना 1:15 तक. 4:30 to 6. ठीक है. Yes. 4:30 to 6. सैटरडे को सुबह रख दो ना क्लास की जगह. Saturday सुबह भी क्लास होता है. 4:30 to 6 फाइनल. ठीक है, 4:30 to 6 किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? सर फ्रेंच है. What time? फिक्स नहीं है टाइमिंग. अराउंड 5:30. तो थोड़ा 6 करवा दो ना, आधा घंटा फिक्स नहीं है. सर फ्राइडे ना फ्रेंच है 5 टी 6:30. 5 o'clock? हाँ. किसका है? ख्याति टीचर. टाइम तुमको करना पड़ेगा कुछ एडजस्ट, या तो सर हमारा क्लास वक्त पे रात को ना. अरे लेकिन मेरे को 2 टाइम नहीं ना, एक ही टाइम में करना है ना. सिंगल टाइम चाहिए. ऑल ऑफ यू हैव टू राइट सिंगल टाइम. ऑनलाइन लिख रहे हो. Keep 2 batches. No? 2 batches will be all. Two batches नहीं है, but let's do one thing then. So you asking that batch also, and then ask them that if Saturday both batches can adjust one time. नहीं फ्राइडे ही रखना है अपने को. तो you do one thing ना, पूजा मिस का थोड़ा करो ना एडजस्ट. एक 2 to 3:30. How many of you are there in पूजा मिस? Me, Vidushi. 2-3 are only there ना. थोड़ा रिक्वेस्ट करो ना मैम को एक दिन. हॉलीडे है ना, तो आगे पीछे कुछ करने को बोल दो ना. कॉलेज तो है नहीं, है ना. So 2 to 3:30 I am keeping. Okay, 2 to 3:30 is the test timing. Hope that is fine now. 2 to 3:30. देखो बात करो, कुछ नहीं होता है तो let me know. Okay, holiday है. Might have kept extra only ना, कॉलेज नहीं है इसके लिए. तो 2 to 3:30 एक्स्ट्रा टाइमिंग थोड़ा एडजस्ट कर लो इकोनॉमिक्स का. 2 to 3:30 is your test. Prepare properly. 40 marks. Bills of exchange. Yeah. What was the doubt? Sir, it got clear. It got clear. Okay. देख लिया, go through किया. 14 adjustments. 2 to 3:30 on Friday. Bills of exchange test. ये रिवाइज करना है अभी with format और adjustment. कल से वापस पूछने का चालू करूंगा. आज काफी लोग का कच्चा था. कल से नहीं आया तो वापस बीओई के जैसा. एडजस्टमेंट नहीं आया तो एडजस्टमेंट लिखो, फॉर्मेट नहीं आया तो फॉर्मेट लिखो, ट्रेडिंग का नहीं आया तो ट्रेडिंग लिखो, पीएनएल नहीं आया तो पीएनएल का पूरा फॉर्मेट लिखो. ओके, तो प्रिपेयर, रिवाइज प्रॉपर्ली. टुमारो वी आर मीटिंग. कल एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगे. प्रॉब्लम्स आई एम स्टार्टिंग. वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर. डोंट रिमेन एब्सेंट. टाटा बाय बाय. Bye sir. Thank you.